Very good afternoon. I welcome all of you, especially Honorable past President of ICI, CA Amarjit Chopra ji and CA Archana Bhutani ji, Holy Saab Mudit ji and all the attendees on today's webinar on CARO and its role to improve corporate governance. Whenever a webinar or seminar came to my mind on CARO, that first name as a speaker came Chopra ji. Without Chopra ji, any seminar or webinar cannot be completed on CARO. But today, as a co-speaker, CA Archana Bhutani is also with us. First, I will introduce Archana ji. Madam Archana ji is a senior partner in BSR and Associate LLP. She has a 20 years of vast experience relating to technical advice on corporate law, accounting, auditing, and other related matters. She has been a special invitee and co-opted member of various committees of ICI, such as Accounting Standard Board, IND AS IFRS Implementation Committee, Expert Advisory Committee. She has a extensive representation in external workshop. She has also contributed as a special editor to the 18th edition of Ramaiya. This is the brief profile of our Archana ji. Welcome, madam. And as a brief profile of today's Honorable Chopra ji. Chopra ji is a former chairman of NIRC during 88-89, Vice President of ICI for the year 2009-10, and President of ICI for 10-11. He was nominated on the board of Bank of Baroda during 2006 to 2009, Indian Bank 2011-2014, Garden Reach Shipbuilder and Engineers Limited during 2011-14 by of India, and he was the chairman of audit committee in all the three organizations. Presently, he has been nominated as the chairman of National Advisory Committee on Accounting Standard under Companies Act by the Government of India, and also nominated as a member to Investor Education and Protection Fund Authority, and also nominated by the Government of India as a member of NAFRA. He has been a faculty in India and abroad, namely Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, Bahrain, Abu Dhabi, Dubai, Muscat, Nepal, Indonesia, Mauritius, etc. in more than 3,000 professional programs. He has been awarded honorary membership of Australian Institute of Chartered Accountants and life membership of Association of International Accounting London. He has also had the privilege of serving at Deshbandhu College Evening as a faculty for more than 2 decades. He is the person who very beautifully drafted the accounting standard, and he is a very helping to all the member and the student, and even after the taking the retirement of student, after the president is always helpful and ready to help member at a large. I remember those words of Chopra ji when he drafted the accounting standard, and we call him as a speaker on accounting standard. कि accounting standard आप पढ़ लो और इसको apply कर लो तो better है. Otherwise, the member will be in a very difficult problem. Then I am seeing that more than the cases on disciplinary committee are related to the non-applying of accounting standard. So with this, I once again welcome our honorable past President Chopra ji sir and Archana Bhutani ji, and welcome once again, and over to you sir. Thank you sir. Thank you Rajesh ji, Mudit ji, Rajiv Kohli ji, and of course Archana, who is the fellow faculty today on this very important topic. About Archana, I can only say that she has been on various institutes committees. She was a nominee. She was an invitee to National Advisory Committee on Accounting Standards also. Yes, sir. And she has been on various technical committees of the institute and has contributed very significantly. One thing that can be said about her is that she says whatever she wants to say, basically. She does not hide her feelings with regard to any of the technical items, and I think that's the hallmark of a good professional. जब आप कोई चीज कहना चाहते हैं जो आपको अगर दूसरे का व्यू पॉइंट ठीक नहीं लगता है तो आपको बोलना चाहिए मेरे ख्याल में, और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है किसी भी व्यक्ति में. तो मेरे ख्याल में that is one quality of hers that I always have appreciated, that she has been very, very candid about her professional opinions.
So anyway, God bless Archana. I can only say you can go miles. You have miles and miles to go. At this age, being the senior partner of Yes, sir. VSR, I think you will go miles and miles. There is no doubt in my mind. And I can see the participation having crossed 200. It's already 216 plus. Yes, sir. और वो भी कारों के ऊपर, मजेदारी है, कारों के ऊपर 216 लोग, मतलब कि 5-7 मिनट के गैप के ऊपर आ रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती. As we have structured it today, I will speak for about 45 minutes first, and then Archana will also speak out, and then we get into the question answer mode ourselves first, and then whatever are the questions from the members that would like to answer. कारो शायद एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे like accounting standards, my life becomes complete at some point of the time or the other. क्योंकि जब मौ कारो थी और मौ कारो से जब हमने 2003 में इसको बदलना था and we had to make it as कारो, उस वक्त भी I chaired that particular committee, और उस वक्त हम उसको मौ कारो से हमने कारो बनाया. हम, मुझे अभी तक याद है, उस वक्त हम ये हंसा करते थे कि मौ कारो का मतलब है माइल्ड एंड अदरवाइज कोऑपरेटिव ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, कि हम हमेशा माइल्ड ही रहते थे, बड़े कोऑपरेटिव होते थे हम क्लाइंट के साथ कि यार इसका कुछ भला, मतलब कि नुकसान नहीं होना चाहिए क्लाइंट का कारो के, मौ कारो के थ्रू. और दूसरा हम ये कहते थे यार माओइज्म इज डेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो व्हाई शुड कंटिन्यू इट इन इंडिया, व्हाई द वर्ड माओ. माओ तो अपने चाइना में भी अब माओ को कोई नहीं मानता, अब तो जीपिंग को मानते, तो why should we have something like Mao? So we said no, let's name it as Karo, company's auditor report order. उसमें ये कहें कि कुछ तो करो यार, let's move on with this. Chandak Saab was the president, I still remember, and when we drafted the Karo and he went to the government, तो गवर्नमेंट ने कहा हम एक क्लॉज हम जरूर ऐड करेंगे, और वो क्लॉज था whether any fraud has been noticed or reported on the management and by the management. तो हम उनसे यही कहते रहे कि साहब आप 5 क्लॉज और ऐड कर लो, ये क्लॉज मत ऐड करो सिर्फ, क्योंकि ये क्लॉज को अब आंसर करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि जो मैनेजमेंट पर फ्रॉड होगा वो तो आंसर हो जाएगा, ऑडिटर कर देगा, पर जो मैनेजमेंट फ्रॉड करेगी वो कौन सा ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, बड़ा मुश्किल है, सीधी सी बात है. बट गवर्नमेंट सेड कि नहीं, हमें ये क्लॉज जरूर ऐड करना. एंड आई कैन टेल यू कि जब ये कारो आई पहले साल के अंदर, बाटा इंडिया रिपोर्टेड 14 फ्रॉड्स ऑन मैनेजमेंट, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज रिपोर्टेड 6 फ्रॉड्स ऑन मैनेजमेंट. पर एक जो सबसे बढ़िया फ्रॉड अपने को मजेदार जो नजर आया, वो एक पुणे की कंपनी है, उन्होंने ये लिखा कि भाई एक हम किसी कंपनी को, किसी डीलर को 3 साल तक व्हीकल सप्लाई करते रहे, और 3 साल के बाद हमें ये पता लगा कि वो डीलर एग्जिस्ट नहीं करता था, और उन्होंने कहा इट्स अ फ्रॉड ऑन मैनेजमेंट. मुझे समझ नहीं आया कि ये फ्रॉड बाई मैनेजमेंट था या ऑन मैनेजमेंट था, कि जो कंपनी किसी डीलर को 3 साल तक कार सप्लाई, व्हीकल सप्लाई करती रहे, और 3 साल तक ये ना पता लगे कि भाई वो डीलर एग्जिस्ट भी करता था या नहीं करता था, तो ये फ्रॉड बाई मैनेजमेंट था या ऑन मैनेजमेंट था, या आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, वेरी फ्रैंकली. I will discuss this particular clause little later also, but this has been one of the most challenging clauses if you ask me. परंतु एक क्लॉज जो हम सदियों से एक टोन में आंसर करते आए हैं, वो क्लॉज है हमारा विद रिगार्ड टू द फिक्स्ड एसेट्स, उसके ऊपर बाद में आता हूं. पर जब ये कारो रिवाइज होती रही, टाइम टू टाइम रिवाइज हुई, 15 में रिवाइज हुई, 16 में रिवाइज हुई, क्योंकि जैसे जैसे कोई फ्रॉड आता था तो कारो रिवाइज हो जाती थी बेसिकली, क्योंकि कोशिश ये होती थी कि उस फ्रॉड का जो मोडस ऑपरेंडी है उसको, लूप होल को प्लग कर दो, परंतु हम रोक नहीं पाए, सच्ची बात तो यही है. अब फिर इस बार एक अटेम्प्ट की है कि भाई जितने अब नए किस्म के फ्रॉड हुए उनको रोकने की कोशिश की जाए, क्योंकि ऑडिटर रिपोर्ट ही नहीं कर रहा कहीं पे. तो ये मतलब कि एक अटेम्प्ट है, एक एफर्ट है, इसका भी
मैंने इस कमेटी को चेयर किया और मुझे लगता है कि इस बार शायद ऑडिटर्स इतनी आसानी से बच नहीं पाएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आई वांट टू फ्राइटन एनीबॉडी और स्केयर एनीबॉडी, बिकॉज एज यू विल गो थ्रू द क्वेश्चंस यू विल योरसेल्फ फाइंड कि भाई इतनी आसानी से पतली गली से निकलना शायद मुश्किल होगा जितनी पतली गली से हम पहले निकलते आए। इसकी एप्लीकेबिलिटी के क्राइटेरिया बड़े सिंपल हैं कि भाई ये इवन फॉरेन कंपनी पे भी एप्लीकेबल है, जिसका जो हमने इंडिया में डिफाइन कर रखा उसको फॉरेन कंपनी को इंडिया में हो, और it is applicable, it is not applicable to a banking company, it is not applicable to an insurance company, it is not applicable to a one-person company, it is not applicable to a small company. इनको ये एप्लीकेबल नहीं है, या ये उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है जो किसी पब्लिक कंपनी की ना तो सब्सिडरी है, किसी पब्लिक कंपनी की वो सब्सिडरी नहीं है, और इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो कैपिटल, पेड अप कैपिटल है और रिजर्व्स है ऑन द बैलेंस शीट डेट वो 1 करोड़ से ज्यादा के नहीं है। दूसरी कंडीशन, ये 3 कंडीशन इकट्ठी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये मजेदारी की बात, ये और नहीं है, यहाँ पे एंड है। दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो कि उसकी कैपिटल और रिजर्व जो है वो 1 करोड़ से कम के हैं, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा के नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई उसकी जो बोरोइंग्स हैं फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी वक्त भी साल में 1 करोड़ से ऊपर की नहीं थी। अगर वो 1 करोड़ से ऊपर की किसी वक्त भी थी साल के दौरान, मतलब कि आपने कैश क्रेडिट लिमिट ले रखी है, तो बाकी टाइम पे तो आपकी कम रही है, परंतु किसी एक डेट को आपने उसको कर दिया। फंड बेस्ड लिमिट्स की बात कर रहा हूँ, नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। पर अगर नॉन फंड बेस्ड लिमिट कभी फंड बेस्ड हो जाए, एलसी आपने ले रखी है, एलसी डिवॉल्व हो जाए और उसकी वजह से 1 करोड़ से ऊपर हो जाए तो भी आप कवर्ड है। आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले रखे हैं, वो भी कवर्ड है। एनबीएफसी से आपने ले रखे हैं, वो भी कवर्ड होंगे। तो ये बात मान के चलिएगा कि अगर साल के अंदर, क्योंकि जो कैपिटल और रिजर्व्स की बात है वो है ऑन दी बैलेंस शीट डेट, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, और जो बोरोइंग्स की बात है वो है ड्यूरिंग द ईयर, साल के अंदर, और जो टर्नओवर है वो भी ड्यूरिंग द ईयर की बात कर रहा है कि अगर आपकी जो टर्नओवर है एज डिफाइंड इन, जो रेवेन्यू डिफाइंड है एज पर शेड्यूल 3, वो अगर 10 करोड़ से ज्यादा का होता है तो आप पे एप्लीकेबल है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होता तो एप्लीकेबल नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर। तो 3 कंडीशन इकट्ठी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ना तो आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, रेवेन्यू आपका 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, आपकी बोरोइंग 1 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए साल के अंदर, और आपकी कैपिटल और रिजर्व्स भी 1 करोड़ से ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर इनमें से 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है, 1 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो एप्लीकेबल हो जाएगी। एक भी कंडीशन, मतलब कि आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा की नहीं है, आपकी कैपिटल और रिजर्व्स 1 करोड़ से ज्यादा के नहीं है, परंतु आपकी बोरोइंग 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आप पे अप्लाई हो जाएगा कारो 2020। अब ये कारो जो एप्लीकेबिलिटी है इसकी, ये पहले तो होना था अप्लाई कि जितने भी मेरे अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहे थे 1/4/2019 के बाद, 1/4/2019 को या उसके बाद जो अकाउंटिंग ईयर शुरू होना था। बट नाउ बिकॉज ऑफ कोविड-19 इट हैज बीन डेफर्ड बाय 1 ईयर। अब जितने भी अकाउंटिंग ईयर मेरे 1/4/2020 के बाद शुरू हो रहे हैं, 1/4/2020 या उसके बाद शुरू हो रहे हैं, उन पे सब पे लागू, मतलब कि जो भी आप ऑडिट करेंगे अगले साल में इसके ऊपर ये लागू है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर कोई अकाउंटिंग ईयर आपका इवन 30 जून को शुरू होगा, 1 जुलाई को शुरू होगा, तब भी लागू हो जाएगा। So let's be very clear so far as this particular part is concerned, that this is going to be applicable in respect of all the financial years which are going to begin on or after 1st April 2020. अब इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं और उसमें चेंजेस कौन कौन से हुई वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में पहले हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते रहे, परंतु अब फिक्स्ड एसेट्स को हमने नॉमेनक्लेचर दे दिया, क्योंकि AS10 मेरा हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। अब हम फिक्स्ड एसेट नहीं लिखते।
और दूसरी जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है वो ये है कि हमने हमेशा ये कहा कि भाई रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के या फिक्स्ड एसेट्स के मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। बैलेंस शीट्स पे इंटेंजिबल एसेट्स नहीं होते थे। आज की डेट में बैलेंस शीट्स के ऊपर इंटेंजिबल एसेट्स ज्यादा हैं। किसी किसी कंपनी में तो 80% 90% इंटेंजिबल एसेट है। तो अब उसकी भी उन्होंने कहा कि भाई उसकी भी निकाल के दो कि उसके बकायदा जो रिकॉर्ड मेंटेन होनी चाहिए वो रिकॉर्ड्स उसके मेंटेन्ड हैं या नहीं है। मजेदारी की बात ये है, इसमें मैं अर्चना का रिएक्शन बाद में जरूर चाहूंगा। बेसिकली मजेदारी की बात यह है कि हम हर साल लिखते थे, पर्टिकुलरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में तो ये लिखा जाता था फिक्स्ड एसेट रजिस्टर्स आर अंडर अपडेशन, पर इसके अंदर एक क्लॉज और होता था और वो क्लॉज ये होता था कि भाई फिक्स्ड एसेट्स की वेरिफिकेशन हुई या नहीं हुई, उसकी एडिक्वेसी है या नहीं है, रीजनेबल इंटरवल पे है या नहीं है। और एक क्वेश्चन उसमें और होता था कि जो डेफिशिएंसीज मिली, जो उसमें डिस्क्रिपेंसीज मिली, वो एडजस्ट हो गई या नहीं हो गई। तो हम लिखते थे हाँ डिस्क्रिपेंसीज जो मिली वो सब एडजस्ट हो गई। तो मेरा अपने मन से हमेशा प्रश्न रहा है, मैं अपने से एक ये बात पूछता रहा कि भाई अगर फिक्स्ड एसेट अंडर अपडेशन ही है तो मुझे बुक बैलेंसेस ही नहीं पता पूरे, और अगर बुक बैलेंसेस नहीं पता तो डिस्क्रिपेंसी कैसे निकालूंगा, और डिस्क्रिपेंसी नहीं निकाल सकता तो फिर मैं ये आंसर कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे आके। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए जब कभी भी। मैं फिर एक बात को बिल्कुल क्लियरली ये कह रहा हूँ, जहां कहीं पे भी आप ये लिखें कि फिक्स्ड एसेट रजिस्टर इज अंडर अपडेशन, वहां पे जब आप डिस्क्रिपेंसीज की बात आएगी तो आप ये नहीं कह सकते कि अब एडजस्टमेंट हो गई सारी की सारी ठीक ठाक, फिर तो आप उसमें किसी भी सूरत में कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास बुक बैलेंसेस ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और एक जो नया क्वेश्चन इसमें ये दिया गया, पहले भी ये क्वेश्चन था, पहले हम ये पूछा गया था भाई कौन कौन सी क्या ऐसी एसेट्स भी हैं जिसमें पर्टिकुलरली लैंड एंड बिल्डिंग्स की बात कर रहा जिसकी टाइटल डीड्स नहीं है। तो हम कहते थे हाँ जी, ये हमने ये कहा था कि भाई इतना एरिया लिख दो या इतने नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज लिख दो कि इनकी टाइटल डीड्स नहीं है, परंतु अब उन्होंने डिटेल कुछ और मांग ली। और वो डिटेल क्या मांगी है, अब उन्होंने ये पूछ लिया आपसे कि उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन दीजिए जिसकी टाइटल डीड नहीं है, उसकी ग्रॉस कैरिंग वैल्यू दीजिए, किसके नाम में है वो ये दीजिए, और अगर कहीं पे प्रमोटर डायरेक्टर उसके रिलेटिव या किसी एम्प्लॉय के नाम में है तो वो डिटेल दीजिए, और पीरियड कब से उसके नाम में चल रही है और होनी थी आपके नाम में तो वो दीजिए, और रीजन दीजिए कि आपने अपने नाम में करवाई क्यों नहीं। तो ये इतना आसान नहीं है, मैं आपको ये बता सकता हूं इसमें हो क्या सकता था। एक आपने फर्म को कन्वर्ट किया कंपनी में, फर्म के नाम में कभी भी एसेट्स होती नहीं है, एसेट किसके नाम में होती है, पार्टनर्स के नाम में होती है। वहां पे तो आपने फर्म के नाम में एसेट दिखा के और उनके कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट कर दिया। अब जब फर्म के नाम से उठ के आएंगी एसेट्स कंपनी के अंदर पर्टिकुलरली, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है कि एसेट्स तो खड़ी रही, लैंड एंड बिल्डिंग खड़ी रही, सपोज करो पार्टनर्स के नाम में, अगर उनके नाम में खड़ी तो किसी दिन पार्टनर अगर बेच के भी चल देना एसेट तो कंपनी वाले को पता नहीं लग सकता। तो इसलिए उन्होंने पूछ लिया कि ये बताओ कि वो किसके नाम में खड़ी है, ये बता दो आज की डेट में, और अगर ये किसी ऐसे रिलेटिव या डायरेक्टर या शेयर होल्डर के नाम में खड़ी है, एम्प्लॉय के नाम में खड़ी है, एम्प्लॉय के नाम में खड़ी है तो बेनामी खड़ी है ना, मोर और लेस एक तरह से। तो उन्होंने ये सारी की सारी डिटेल मांग ली है आपसे बेसिकली। फिर उन्होंने कहा, एक क्वेश्चन हमने कभी उड़ा दिया था इसमें से, जब हम माओ कारो से कारो पे आए थे तो हमने रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन उड़ा दिया था। हमने कहा था जी अगर रिवैल्यूएशन होनी है तो वो चला जाएगा ना सीधा AS10 के अंदर, AS10 में मैं देखूंगा, अगर AS10 की नहीं कंप्लायंस होगी तो मुझे रिपोर्ट करनी है इन दी मेन रिपोर्ट इन एनी केस। पर इस बार उन्होंने फिर कहा कि नहीं भाई ये रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन इसमें लेके आओ, और रिवैल्यूएशन में आप ये बताओ कि क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की और या इंटेंजिबल एसेट्स की या राइट टू यूज की कोई वैल्यू की रिवैल्यूएशन की है क्या, और अगर की है तो किस बेसिस पे की है। जो वैल्यूअर का सर्टिफिकेट है
उस वैल्यूअर का है जो रजिस्टर्ड है, जिसकी कंपिटेंस है, जिसकी क्वालिफिकेशंस है, और अगर किसी भी एसेट की रिवैल्यूएशन उसकी कैरिंग वैल्यू से 10% से ज्यादा है तो वो आपको बताना है। तो आई थिंक दिस इज अगेन अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन विच हैज कम इन। एक उन्होंने और क्वेश्चन पूछ लिया कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बेनामी नाम में आप होल्ड कर रहे हो और उसके लिए प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है कंपनी के अगेंस्ट। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं आपको। Whether any proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any Benami property as defined under the Benami Transaction Prohibition Act 1988 and rules made thereunder, if so, whether the company has adequately or appropriately disclosed the details in its financial statements. इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मुझे पता कैसे लगेगा कि कोई बेनामी प्रॉपर्टी है। इसके लिए हम सबको मैनेजमेंट से एक रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी कि भाई आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग शुरू नहीं है। अगर प्रोसीडिंग नहीं शुरू तो फिर मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात क्वेश्चन सिर्फ इस बात का है वेयर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंपनी। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उनसे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लीजिए कि भाई आपके अगेंस्ट कोई बेनामी एक्ट के अंदर तो कोई प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है। सपोज कीजिए उन्होंने कहा नहीं हुई, मैं अब आपको दूसरा एक वो बता रहा हूं। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में कह दिया नहीं हुई, परंतु एक मेरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है विद रिगार्ड टू मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, वो ये भी कहता है कि आपको ऑथेंटिसिटी और वेरासिटी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस की चेक करनी है बिफोर रिलाइंग अपॉन दैट। तो वो क्या, उसका क्या मतलब है? आपने जब लीगल एंड प्रोफेशनल फीस के बिल देखे, आफ्टर लीगल चार्जेस डेबिटेड तो P&L में होंगे ना, किताबों में आपने बिल देखे, उसमें एक वकील का फीस है, वकील का बिल है जो ये कह रहा है कि भाई रिप्रेजेंटिंग द कंपनी बिफोर द बेनामी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बेनामी प्रोसीडिंग्स। तो फिर आपको पकड़ना चाहिए पड़ेगा ना, फिर आप छोड़ोगे थोड़ी ना। फिर सिर्फ आप इस बात पे ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंट किया इसलिए हमने उनकी बात मान ली है। अगर आपको कहीं से भी ये हिंट मिलता है तो आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर फिजिकल verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and whether in the opinion of the auditor the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate। यहां तक तो पहले भी था, इसमें कोई शक नहीं है। Whether discrepancies of 10% or more in the aggregate of each class of inventory, ये सुनने की बात है जरा। यहां वो ये कहता है कि अगर आपका रॉ मटेरियल है, आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, आपका टूल्स हैं, आपके स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं, आपके फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, फिनिश गुड्स हैं, अगर उसमें से किसी भी एक क्लास में, क्लास ऑफ आइटम्स में, बेसिकली ये ओवरऑल 10% की बात नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये कहता है किसी भी क्लास ऑफ आइटम्स में अगर वेरिएशन 10% से ज्यादा है। इसका मतलब क्या? अगर सपोज कीजिए मेरे फिनिश प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल लगता है ABC, ए में वेरिएशन 10% है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, अगर ओवरऑल 10% से कम है तो मुझे इस बात को रिपोर्ट नहीं करना। अगर मेरे रॉ मटेरियल 3 है तो तीनों में अगर ओवरऑल वेरिएशन मेरी 10% से ऊपर होगी तो रिपोर्ट करना। इंडिविजुअल आइटम की बात नहीं कर रहा। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। इट टॉक्स ऑफ एग्रीगेट वेरिएशन इन ए क्लास ऑफ आइटम्स। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लास ऑफ आइटम्स मैंने आपको बताई, रॉ मटेरियल्स भी हो सकते हैं, फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, स्टोर्स एंड स्पेयर हो सकता है, पैकिंग मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उनमें 10% से ऊपर, एक पर्टिकुलर क्लास में 10% से ऊपर है, then you will be reporting whether these were noticed and these have been adjusted in the books of accounts। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हमने अपने आप अपने पे बुलाया। मैं हमेशा कहता हूं सर, बैंकों में 11 लाख करोड़ के एनपीए हैं और करीबन 17 लाख करोड़ के डिक्लेयर्ड नहीं है। कम से कम ये आपको बता सकता हूं, कम से कम 17 लाख के डिक्लेयर्ड नहीं है और 11 लाख के हैं। तो ये क्यों हुए एनपीए?
कि किसी ने जितना भी डाटा जाता था पार्टी से, चाहे वो स्टॉक्स का हो या डेटर्स का हो, वो तो कहां से जाता था अपने को पता नहीं, परंतु इन्वेंट्री में से तो नहीं जाती थी और डेटर में से नहीं जाते थे। तब उन्होंने ये कह दिया कि भाई अगर किसी कंपनी ने, किसी एंटिटी ने 5 करोड़ से ऊपर की वर्किंग कैपिटल सैंक्शन है, जिसको सैंक्शन की बात कर रहा हूँ, अवेल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको 5 करोड़ से ऊपर की लिमिट्स हैं सैंक्शन, और जो वो स्टॉक स्टेटमेंट्स या जो वो डेटर्स के स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जो रिटर्न्स उन्होंने फाइल करनी है, बेसिकली वो रिटर्न्स आप हो सकता है मंथली फाइल करते हो, पर उन्होंने कहा क्वार्टरली बेसिस पे आपको जरूर चेक करना है, और ये चेक करना है कि उनकी वो जो है वो आपकी किताबों में से ही गई हुई है, हवा में से नहीं गई हुई। और हमें पता है जिस तरीके से इन्वेंट्रीज जाती रही हैं और डेटर्स जाते रहे। आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, पीछे हमने एक डिसिप्लिनरी केस किया। आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल एंड आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड दैट एग्जांपल अर्लियर आल्सो। इस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक डेटर स्टेटमेंट साइन किया, और वो डेटर स्टेटमेंट साइन किया 2,95,00,000 का 31 दिसंबर से 2015 को। साल में अज्यूम करो, फिगर्स मेरी ठीक है, पीरियड और महीना मेरा ठीक है। 31 दिसंबर को 2,95,00,000 के डेटर सर्टिफाई किए। इस कंपनी की ओपनिंग डेटर्स थे 55 लाख, और पूरे साल की सेल 1/4/2015 से लेके 31/3/2016 तक की 2,05,00,000 है। अगर मैं ये मान लू ना कि एक भी पैसा रिकवर नहीं हुआ, ना ओपनिंग का ना सेल का, तो भी 2 साल से ऊपर के डेटर नहीं होते। तो इसलिए उसने कहा कि भाई जो डेटर्स की स्टेटमेंट फाइल हो रही है और जो स्टॉक की स्टेटमेंट फाइल हो रही है, उनको ये देख लो कि किताबों में से आ रही है। अगर किताबों में से नहीं आ रही तो फिर तो आपका एसए 240 लागू हो जाएगा इमीडिएटली। फिर आपको जो अगर फ्रॉड है तो फ्रॉड रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ये फ्रॉड किसने किया? ये फ्रॉड किया मैनेजमेंट ने। उसका असर सिर्फ इसी पैराग्राफ में नहीं होगा, उसका असर उस पैराग्राफ में भी होगा जहां पे आपको ये लिखना वेदर एनी फ्रॉड हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ऑन मैनेजमेंट और बाय मैनेजमेंट। और फिर वहीं पे भी खत्म नहीं होगी। 143(12) में अगर कोई फ्रॉड आप देखते हैं तो आपको सरकार को ADT 4 में भी रिपोर्ट करना। तो ये सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होगा, ये इस पैरे का असर, इस पैराग्राफ का असर कहीं और भी जाके खत्म होगा बेसिकली। तो इस बात को जरा मद्देनजर रखिएगा, यही मैं कह सकता हूं। पर इसके बाद के जो पैराग्राफ्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो इसकी हर वर्ड है, ये बता रहा हूं कारो 20 की। परंतु ये जो वर्ड है इसके, अब ये डील करेगा इन्वेस्टमेंट्स के साथ, एडवांसेस के साथ जो इन्होंने दिए, या इन्होंने जो एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन दिए। इस बात पे बिल्कुल गौर कर लीजिएगा। इस बार सबसे ज्यादा वर्ड पे जो एम्फेसिस है इस बार वो है एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन्स। और ये जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे क्लॉजेस को, आपको ये पता लगेगा ये सिर्फ बात मियरली एडवांसेस की, मियरली लोन्स की, मियरली इन्वेस्टमेंट्स की नहीं कर रहा। ये उन एडवांसेस की भी बात कर रहा है जो कि आपने दिए विच आर इन नेचर ऑफ लोन्स। व्हाट आर इन नेचर ऑफ लोन्स? आपको एग्जांपल दे देता हूं। आपने किसी कंपनी को पैसा दिया 5 करोड़ रुपए एडवांस, और उसको कहा कि मेरे को आप माल सप्लाई करोगे, एडवांस गिवन अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ मटेरियल, और उस कंपनी की टर्नओवर 1 करोड़ रुपया नहीं है मीन साल की। तो दिस इज नथिंग बट एन एडवांस इन नेचर ऑफ लोन, क्योंकि एक्चुअल में आपने उसको लोन दिया, आप दिखा रहे हैं एडवांस अगेंस्ट सप्लाई, और या उससे आपने दिया तो लोन, आपने एडवांस तो दिया 5 करोड़, साल की सप्लाई उससे नहीं आती आपके पास 50 लाख की भी। तो ये एडवांस इन नेचर ऑफ लोन है। और अगर आप 143(1) भी पढ़ेंगे ना सेक्शन कंपनीज एक्ट का, जिसमें वो कहता है कि किन्हीं बातों को आपने इंक्वायर करना है, उसमें भी बड़ा क्लियरली ये कहा गया है कि आपको इंक्वायरी करनी है कि कोई एडवांस इन नेचर ऑफ लोन तो नहीं दिया गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये नया टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी पहले भी थी और आज भी है।
बेसिकली। पहले 227(1) में थी और अब ये 143(1) में है, तो कहीं ना कहीं हम वहां पे हैं। और अब इन्होंने हर सेंटेंस में ये पूरे पैराग्राफ्स, अगर मैं यहां से पढ़ूं, पहले तो वो मांगता है कि भाई किसी भी कंपनी को दिया आपने, कि क्या आपने साल के दौरान या वैसे आपने whether during the year the company has made investments in, provided any guarantee or security, or granted any loan or advances in nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, limited liability partnerships or any other parties. ये किसी को भी दिया हो आपने, उसके बारे में क्वेश्चन कर रहा। पर उसके बाद फिर उसने बाइफरकेट किया इस क्वेश्चन को फर्दर। उसने कहा whether during the year company has provided loans or provided advances in nature of loans or stood guarantee or provided security to any other entity not applicable to companies whose principle is to have loan, to give loans. अगर आपका बिजनेस ही लोन्स देने का तो आप पे एप्लीकेबल नहीं है, परंतु आपकी बिजनेस तो है ट्रेडिंग, आपकी बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग, आपकी बिजनेस है सर्विस इंडस्ट्री, और फिर आपने अगर ये काम किए, उस केस में आपने क्या देखना और कौन सी डिटेल आपको चाहिए? The aggregate amount during the year and balance outstanding at the balance sheet date with respect to such loans or advances and guarantees or securities of subsidiary, joint venture and associates. जो ये चीजें आपने अपनी सब्सिडरी को, जॉइंट वेंचर्स को, एसोसिएट्स को दी हैं, उसकी एग्रीगेट चाहिए। उसकी एग्रीगेट, एक तो जो दिया वो, और जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है। ये हो सकता है ना कि आपने दिया हो साल में 5 करोड़, वापस ले लिया 5 करोड़, तो वो नजर आना चाहिए। आप ये लिखोगे बैलेंस तो नील है पर दिया था, तो आप ये नहीं कर सकते कि साल के आखिर में नील करके कहो जी बैलेंस ही नहीं था। तो उन्होंने कहा वेदर यू हैव गिवन ड्यूरिंग द ईयर एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग, दोनों चीजें मांग ली आपसे, तो इसलिए आप उसको एस्केप नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। और जो बी पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है, द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट with respect to such loans or advances or guarantees or security to parties other than the subsidiaries. जो डिटेल्स आपसे उन्होंने सब्सिडीज, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स के लिए मांगी, वो डिटेल्स अगर आपने किसी और दूसरी कंपनीज को दे रखी, दूसरी एंटिटीज को दे रखी, एलएलपीज को दे रखी, जो आपकी सब्सिडीज, आपके जॉइंट वेंचर, आपके एसोसिएट नहीं, वो डिटेल भी आपने अलग से देनी है बेसिकली। उसके बाद उन्होंने लिखा वेदर द इन्वेस्टमेंट मेड, जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की, जो आपने गारंटीज दी, जो आपने सिक्योरिटीज दी, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है देने की, या लोन्स आपने दिए या एडवांसेस आपने नेचर ऑफ लोन दिए, वो प्रेजुडिशियल तो नहीं है कंपनी के इंटरेस्ट को। आपने दिखा दिया एडवांस है वो लोन, आप तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे, आपने इंटरेस्ट ले रखा बैंकों से, तो आप बच नहीं सकते। आपको ये कहना पड़ेगा इट इज नॉट, इट इज प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। तो ये सब चीजें, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि हर केस में आप ये कह देंगे प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट, पर आपको ये कमर्शियल कंसिडरेशन तो देखनी पड़ेगी। जब कभी भी आप अगर आपने सपोज कीजिए अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया, सब्सिडरी में इन्वेस्ट करने के बाद आपने ये देखा उसकी नेटवर्थ कभी बनती नहीं, नेटवर्थ तो इधर उधर हो रही है और ऑलरेडी लॉस मेकिंग थी, या कोई बाहर वाली कंपनी थी लॉस मेकिंग थी। मैं आपको कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर प्रेस में नाम है उसका कंपनी का। उस कंपनी ने यही किया कि अपनी जो आगे दूसरी कंपनीज थी उनको पैसा देते रहे, जबकि उससे पैसा कभी वापस ही नहीं आना था। तो दैट इज प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। अगर उसकी हालत इतनी खराब है कि आपको ये पता उससे पैसा नहीं आना, तो फिर इस कंपनी का तो पैसा गया ना। एंड एवरी कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इस बात को जरा मद्देनजर रखिएगा। This is one point that it goes on to say, and then it goes on to ask you, in respect of loans and advances, in nature of loans and advances, in the nature of loans, whether the schedule of repayment of principal and interest has been laid down. वो कहता अगर आपने किसी को कोई लोन दिया या उसको आपने एडवांस दिया इन नेचर ऑफ लोन्स, उसकी रीपेमेंट की कुछ फिक्स की है टर्म्स एंड कंडीशन या नहीं की है, इंटरेस्ट की भी और प्रिंसिपल की भी, और अगर की है तो वो जो पेमेंट्स आनी चाहिए, रीपेमेंट आनी चाहिए, वो रेगुलर भी है या नहीं है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया।
और कहता अगर ओवरड्यू है तो फिर ये भी बताओ कि कितना ओवरड्यू, और जो 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू है तो ये बताओ कि कंपनी ने स्टेप क्या लिया इसको रिकवर करने के लिए, उस पर्टिकुलर अमाउंट को, प्रिंसिपल को भी और इंटरेस्ट को भी। इसके आगे का क्वेश्चन पूरे का पूरा नया है। ये क्वेश्चन कहता है वेदर एनी लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड विच हैज फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, जो मैं और अर्चना इनफॉर्मली बात कर रहे थे पहले, सपोज कीजिए आपने किसी को लोन दिया और वो लोन ड्यू हो गया और आपने उसको एक नया लोन या एडवांस इन नेचर ऑफ लोन दे दिया और उससे आपको उसमें वो वापस कर दिया, तो दिस इज एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। अगर ये हुआ तो बताओ, ये आईएलएफएस से निकल के आया पॉइंट, सीधी सी बात ये। हालांकि आईएलएफएस तो एनबीएफसी थी, उस पर ये लागू ही नहीं होना चाहिए था पॉइंट, परंतु उन्होंने किया। पर कुछ कंपनीज भी यही कर रही हैं कि पेरेंट ने सब्सिडी को दिया हुआ, जब सब्सिडी ने रीपे करना होता है पेरेंट उसको और दे देती है पैसा। तो उन्होंने ये पूछ लिया आपसे कि भाई अगर ये हुआ है तो प्लीज बता दो, और ये पूछ लिया कि सो स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज रिन्यूड और एक्सटेंडेड और सेटल्ड बाय वे ऑफ फ्रेश लोन्स। आपने या तो उसको एक्सटेंशन दे दी या उसको रिन्यूअल दे दी या आपने उसको पैसा दे के फ्रेश लोन कर दिया बेसिकली। इन ऑल दोस केसेस दिस हैज टू बी रिपोर्टेड और उसकी परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द टोटल लोन इज टू बी शोन। सपोज कीजिए आपने दिया हुआ 5 करोड़ रुपया से 4 करोड़ रुपया डी हुआ, आपने 4 करोड़ और दे दिया, तो ये कितने परसेंट हुआ बेसिकली 5 करोड़ का, वापस 80% खड़ा हो गया जो आपने रिन्यूअल किया या फ्रेश लोन देके उसको एडजस्ट कर लिया या जहां पे आपने पीरियड एक्सटेंड किया हुआ। तो 80% जो पैसा गया हुआ है लोन्स का या एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन्स, वो आपका गड़बड़ होने वाला है। ये इंडिकेशन हो रही है बेसिकली इस पूरे क्लॉज से। दूसरा वो ये कहता है कि अगर आपने, क्योंकि हम सब लोग ये गड़बड़ कर रहे थे, सच्ची बात, ये जो नेक्स्ट क्लॉज है ये हमारी क्रिएशन है। हमने क्लाइंट को कह देते थे कि यार तुझे ना, तू टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स ही मत कर रीपेमेंट की, कह दे इट इज ऑन डिमांड, कि डिमांड करूंगा तो दोगे ना, मैंने डिमांड ही नहीं किया तो ओवरड्यू कहां हुआ। देयर इज नो वे दैट इट हैज बिकम ओवरड्यू। अब उन्होंने पूछ लिया वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स ईदर रीपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स ऑफ पीरियड टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट। इफ सो specify the aggregate amount, percentage thereof to the total loans granted, aggregate amount of loans granted to promoters, related parties as defined in clause so and so of the section 2। क्या मतलब हुआ? वो कहता आपने कुछ ऐसे लोन दिए, या तो ये कह के दे दिए डिमांड लोन से, या आपने ये कह लोन दे दिए या इन दी एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन दे दिए, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स ही नहीं की। वो कहता है ये बताइए कि टोटल लोन्स कितने हैं ऐसे, और उसमें से कितने लोन ऐसे जिसमें से कोई कंडीशन फिक्स नहीं की हुई आपने। ये सब कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, आज तक नहीं करते थे, पर अब मेरे ख्याल हमारे पास कोई चारा बचा नहीं है इसके अंदर। उसके बाद जो प्रोविजन है वो पिछली बार भी थे बेसिकली, वो 185 और 186 की कंप्लायंस की बात कर रहा with regard to loans given to the directors etc, वो पहले भी था और वो आज भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज आपका डिपॉजिट्स का है, वो पहले भी था वो आज भी है, कोई चेंज नहीं है उसमें बेसिकली। कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का भी वही क्वेश्चन है, स्टैट्यूटरी ड्यूज का भी वही क्वेश्चन है। डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड में सिर्फ एक फर्क हो गया कि जहां पे जीएसटी आना चाहिए था वहां पे जीएसटी वर्ड ऐड हो गया बेसिकली। अभी आपने एक्साइज ड्यूटी वैट वगैरह के वर्ड वहां से डिलीट नहीं किए क्योंकि कई चीजें अपील में पड़ी होंगी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी की डिमांड तो आज भी आ सकती है ना जहां पे केसेस अपील में है, तो इसलिए वहां पे डिलीट नहीं किया, परंतु जीएसटी का वर्ड वहां पे ऐड कर दिया गया है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसको जरा गौर फरमाइएगा, राजेश जी खास तौर पर, और अर्चना जी से भी कहूंगा इस पर रिएक्शन जरूर देंगे। ये जितने टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये समझ लेना क्वेश्चन। ये कहता है वेदर एनी ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act 1961।
If so, whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books of accounts during the year. फिर repeat कर रहा हूँ question को. Whether any transaction not recorded in the books of accounts have been surrendered or disclosed as income during the year. Have been surrendered or disclosed in the year. बड़ी सिंपल सी बात है. पिछले सालों में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की थी, वो आप सरेंडर इस साल में आपने सरेंडर कर दिया या डिस्क्लोज कर दिया. वो कहता है इसको आपने अपनी इनकम वगैरह में इस साल आके रिकॉर्ड कर लिया प्रॉपरली या नहीं किया, ये बता दीजिए बस. ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है. बेसिकली ये पता कैसे चलेगा? हम पिछले सालों की थोड़ी ऑडिट कर रहे हैं. We are doing the current audit. अगर कोई भी चीज सरेंडर करोगे इस साल में जी, तो आप पूछोगे then we ना, have to report. Then we have to. उसकी अकाउंटिंग देखनी है कि इस साल अकाउंटिंग क्या की. अगर आपने कैश सरेंडर किया तो इनकम को क्रेडिट करके कैश को डेबिट करोगे ना. जी सर, जी सर, वेरी राइट सर. अगर इन्वेंट्री को सरेंडर किया तो इन्वेंट्री इनकम में तो ले जाना ही पड़ेगा ना उतना पोर्शन, ले जाना. ये जरूरी है. तो उन्होंने उसका ट्रीटमेंट पूछ लिया कि ये देख लो कि ट्रीटमेंट किया हो, ये नहीं हो कि डिस्क्लोज कर दिया उसके बाद पता ही नहीं क्या. तो आई थिंक दिस इज वन पॉइंट विच यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट. एक उनका अगला क्वेश्चन ये है कि वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और अदर बोरोइंग्स और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. ये क्वेश्चन पहले भी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं सिर्फ इसमें एक बात कहना चाह रहा हूं और इस पर अर्चना का कमेंट जरूर चाहूंगा बाद में. मैं जब डिफॉल्ट इन रीपेमेंट की बात करता हूं तो ये माना जाता है कि टर्म लोन के रीपेमेंट के डिफॉल्ट ही कर रहा हूं मैं बात. कैश क्रेडिट की कोई बात नहीं करता, क्योंकि कैश क्रेडिट मैं ये कहता हूं कि इर्रेगुलरिटी इन अकाउंट है, इट इज नॉट अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट. परंतु अगर किसी अकाउंट में एलसी का डिफॉल्ट हुआ, एलसी डिवॉल्व हुई, तो एलसी की डिवॉल्वमेंट तो उसी डेट में ड्यू हो गई ना पेमेंट को. एलसी वाज ड्यू टू बी पेड, तो दिस इज डेफिनेटली अ डिफॉल्ट. तो जहां जहां पे भी एलसीज की डिफॉल्ट होगी या बैंक गारंटीज इन्वोक होंगी और आपने पे करनी है और आपने पे नहीं की है, वो डिफॉल्ट माना जाएगा हर सूरत में पेमेंट का. हालांकि एलसी की डिफॉल्ट वर्किंग कैपिटल की है, परंतु डेफिनेटली एलसी की अगर डिफॉल्ट हुई है तो इट वाज ड्यू ऑन अ पर्टिकुलर डेट. बैंक गारंटी कि आप अगर आप उसको रेज किए तो इट इज टू बी पेड विद इन 30 डेज और जो जिस दिन भी उसने कहा कि आप पे करो, अगर उसके बियॉन्ड जाएगा, in that particular case it will be considered to be an amount in default with the banks. क्योंकि कुछ केसेस हमारे सामने आए हैं जिसमें ऑडिटर्स ने ये कहा कि जी एलसी डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट ही नहीं है, इट इज नॉट ए डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, ये तो मेरे सीसी अकाउंट को डेबिट हुआ. भाई एलसी का अमाउंट तो सीसी को डेबिट करना पड़ा उनको, बट एलसी यू आर सपोज्ड टू ऑर्गेनाइज, एलसी यू आर सपोज्ड टू ऑर्गेनाइज द पेमेंट. आपने ऑर्गेनाइज नहीं की और जिस दिन ड्यू हुई उसी दिन से ड्यू है वो. और अगर आपने पेमेंट नहीं की है, इन दैट पर्टिकुलर केस दिस विल बी कंसीडर्ड टू बी अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ टू द बैंकर्स. एक क्वेश्चन और पूछा गया, वेदर द कंपनी इज अ विलफुल डिफॉल्टर by any bank has been declared as a willful defaulter by any bank or financial institution or other lender. पहली बात तो आप मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट लेंगे कि भी आपको नहीं किया. दूसरा, इसको आरबीआई की साइट पे जाकर देख लीजिए, चेक करेंगे वहां से. और तीसरा, गूगल में जाके भी सर्च मार लीजिए विलफुल डिफॉल्टर्स में. You are expected to do this. Let's be clear so far as this particular part is concerned. फिर ये कहता है whether term loans were applied for the purpose, ये पहले क्लॉज था, फिर चला गया, अब वापस आ गया. Whether the term loans were applied for the purpose for which the loans were obtained, if not the amount of loans so diverted and the purpose for which it is used may be reported. जैसे मैं इनफॉर्मली डिस्कस कर रहा था बिफोर द प्रोग्राम बिगिन, मैंने टर्म लोन लिया और रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में डाल दिया. टर्म लोन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट.
Term loan cannot be used for the repayment of term loan itself unless the bank has granted me the term loan for that particular purpose. टर्म लोन का अगर पर्पज ये है कि आपने मशीनरी खरीदनी है और मशीनरी आपने नहीं खरीदी तो भी उसमें, पर इसमें ये सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि आपने टर्म लोन लिया फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, 31 मार्च को बैंक ने आपको क्रेडिट किया, हालांकि आप क्रेडिट करेंगे नहीं, वो नॉर्मली पार्टीज को डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। सपोज कीजिए आपको क्रेडिट कर दिया और आपकी मशीनरी खरीदी गई 15 अप्रैल को और उसकी पेमेंट बाद में चलेगी, तो आप इसको वर्ड ये करेंगे कि भाई 31 मार्च को तो नहीं यूज हुआ था उस पर्पज के लिए, परंतु 15 अप्रैल को हमने इसका यूज देख लिया एंड इट हैज बीन यूज्ड फॉर द पर्पज फॉर व्हिच इट वाज मेंट फॉर। तो इट विल बी अ पॉजिटिव स्टेटमेंट सो फार एज द कंपनी इज कंसर्न। ये एक अगला क्वेश्चन है, ये भी चला गया था, ये वापस आ गया। Whether the funds raised on the short-term basis have been utilized for long-term purposes? If yes, the nature and amount to be indicated. सिंपल सी बात है, मेन कौन सी कंपनीज मरी हैं जिन्होंने अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को लॉन्ग टर्म यूजेस में डाला? वर्किंग कैपिटल ली, मशीन खरीद ली, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा नहीं बचा, वो कंपनीज मरी हैं। तो इसके लिए आपको फंड फ्लो देखना पड़ेगा पूरे का पूरा। अगर फंड फ्लो में आपको ये नजर आता है कि पैसा तो आ रहा था शॉर्ट टर्म से और जा रहा था फिक्स्ड एसेट्स में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, फिर डाइवर्जन है। परंतु अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इफ यू आर ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, तो प्रॉफिट भी आप ऐड करोगे इन द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्योंकि अगर प्रॉफिट से मैं ले सकता हूं अपनी एसेट्स। सपोज कीजिए मेरा टोटल इनफ्लो प्रॉफिट से 10 करोड़, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मेरी 2 करोड़ की है। अगर मैंने 8 करोड़ की एसेट्स खरीद ली, 6 करोड़ की एसेट्स खरीद ली, तो वो मैंने कहीं शॉर्ट टर्म बोरोइंग से नहीं खरीदी, वो मैंने डेफिनेटली उसमें से खरीदी है, प्रॉफिट में से खरीदी। तो वो मुझे फंड फ्लो स्टेटमेंट बना के देखना पड़ेगा कि वो मेरी डाइवर्जन आ रही है या नहीं आ रही है। और I think this is a guidance which has been given earlier also, and the same guidance would continue so far as this particular part is concerned. New question: whether the company has taken any loans, any funds from any entity or person on any account to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures. अगर मैंने किसी व्यक्ति से कोई पैसा लिया और वो इसलिए लिया कि मुझे सब्सिडीज की चुकता करनी है, उनकी लायबिलिटीज, उनकी ऑब्लिगेशंस खत्म करनी है, तो आपको रिपोर्ट करना। और ये और पूछ लिया कि क्या इन ट्रांजैक्शंस में, एक तो नेचर पूछ ली है और फिर बेसिकली ये है कि भाई ये भी बता दो कि डिफॉल्ट वगैरह तो नहीं, हालांकि इसमें पूछा नहीं, पर अगर कहीं पर डिफॉल्ट हुआ तो बता जरूर देना उस पर्टिकुलर केस में। जो नया क्वेश्चन हो रहा है वो ये है कि whether the company has raised loans during the year on the pledge of the securities held in the subsidiaries, joint venture, associates. आपने जो सब्सिडीज में आपके शेयर्स हैं, जॉइंट वेंचर्स में, एसोसिएट्स में हैं, उनके अगेंस्ट कोई पैसा रेज किया है क्या, और क्या कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया क्या उस रीपेमेंट में? क्योंकि आपने कौन से शेयर्स के अगेंस्ट पैसा लिया हुआ? सब्सिडी के शेयर्स के अगेंस्ट, वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और वो इन्वेस्टमेंट्स में के अगेंस्ट जो आपने पैसा लिया उसमें आप डिफॉल्ट कर गए, तो ये इन्वेस्टमेंट तो आपकी बिक जाएंगी कभी भी। और अगर वो सपोज कीजिए आपकी मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट हो उस सब्सिडरी में, तो उसका कंसिक्वेंस क्या हो सकता? कंसिक्वेंस ये हो सकता है कि वो आपकी सब्सिडी नहीं रहेगी आने वाले टाइम में। इसलिए ये आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा। सपोज कीजिए आपकी 25% की होल्डिंग है, 25% की होल्डिंग आपने एसोसिएट की लगा रखी है, लोन ले लिया उसके अगेंस्ट, तो आपकी तो वो एसोसिएट नहीं बचेगी अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया और दूसरा व्यक्ति ने अगर शेयर बेच दिया आपके। तो दिस पर्टिकुलर दीज क्वेश्चंस आर न्यू क्वेश्चंस। बाकी उसके बाद आईपीओ में पहले हम लिखते थे कि भाई आईपीओ का पैसा जो है उसी के लिए यूज किया, अब उन्होंने एफपीओ और मांग लिया कि जो आपने फर्दर भी कोई इशू किया है उसका भी अगर कोई पैसा है कहीं आपने यूज किसी और पर्पस के लिए तो नहीं कर दिया जिसके लिए नहीं करना चाहिए था। एक ऑलरेडी क्वेश्चन था प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पे, वो भी वही क्वेश्चन है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फ्रॉड वाला भी क्वेश्चन वही है, पर फ्रॉड वाले में मैं सिर्फ एक ही बात आपको कहना चाह रहा हूं, फ्रॉड ऑन मैनेजमेंट बाय मैनेजमेंट
मैं इस पे जरूर कोई ना कोई व्यक्ति अगर कोई इस पे गाइडेंस दे सके कि भाई मेरे को बैंक ने ये कहा है कि आपने जेन्युइन ट्रेड बिल सिर्फ डिस्काउंट करना है, और मैं अकोमोडेशन बिल बना के डिस्काउंट करवाता रहा, डिफॉल्ट नहीं किया। फ्रॉड तो ये भी है, फ्रॉड, इट इज ऑल्सो ए फ्रॉड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। मैं इसी तरीके से कहता हूं कि मैंने पावर का कनेक्शन, अब तो खैर वो स्मार्ट मीटर्स आ गए, पहले दूसरे मीटर्स होते थे और वो लाइन खींच लेता था सीधी, और इंस्पेक्टर आया और उसने पकड़ लिया। आपको अगर याद हो वजीरपुर और अशोक विहार में तो प्रॉफिट ही तब आता था अगर मैं पावर चोरी करता था, नहीं तो जी लॉस सर। नहीं रहता था मैं। जी सर। वो उसने पकड़ लिया और उसने पेनल्टी लगा दी, पेनल्टी मैंने चुपचाप पे कर दी। तो इट वाज आल्सो ए फ्रॉड बाय द मैनेजमेंट on the other authorities. Intent to defraud anybody. It is not essential कि उससे लॉस ही हो दूसरे को, पर अगर आपकी इंटेंशन भी है ना किसी को डिफ्रॉड करने की, तो ये सब एस्पेक्ट उसमें कवर्ड हैं इस पर्टिकुलर क्लॉज में। और फिर उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या एडीटी 4 कोई फाइल हुआ है कंपनी में। एडीटी 4 का मतलब है कि ऑडिटर ने कोई एडीटी 4 फाइल किया हुआ है। एडीटी 4 विद रिगार्ड टू फ्रॉड है अंडर सेक्शन 143(12). अगर वो फाइल हुआ है तो उसकी भी डिटेल दे दीजिए कि क्या क्या फाइल हुआ उस केस में। और उसके बाद उसने ये पूछा कि भाई कोई विसल ब्लोअर है कंपनी में जिसने कोई विसल ब्लो की है। अब इसके लिए आपको पूछना पड़ेगा कंपनी से कोई विसल ब्लोअर पॉलिसी है क्या आपकी, यू विल हैव टू टेक इट इन राइटिंग। और अगर विसल ब्लोअर पॉलिसी है तो आप कंप्लेंट रजिस्टर दिखाइए क्या क्या है, और वो कंप्लेंट देखिए और उस पे एक्शन हुआ या नहीं हुआ विसल ब्लोअर पे, और नहीं हुआ तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर केस में। बाकी क्वेश्चंस निथी कंपनीज के वो मैं टेकअप नहीं कर रहा हूँ। इंटरनल ऑडिट के ऊपर उन्होंने बड़ा क्लियर क्वेश्चन दे दिया, वेदर द कंपनी हैज एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसुरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ इट्स बिजनेस। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि whether the reports of the internal auditors for the period under audit were considered by the statutory auditor। जब मैं ये कहता हूं कि इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, तो इंटरनल ऑडिट सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो रिपोर्ट देता रहे, उसके बाद एक एक्शन टेकन रिपोर्ट होती है कि मैनेजमेंट ने उसके अगेंस्ट एक्शन क्या लिया, और अगर मैनेजमेंट एक्शन नहीं ले रही तो फिर वो इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसुरेट नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हमारे यहाँ क्या होता है, इंटरनल ऑडिटर से हम रिपोर्ट तो लेते रहते हैं, एक्शन ही उस पर लेते हैं, और वो बार बार वही पॉइंट रिपीट करता रहता। इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू से दैट द इंटरनल ऑडिट सिस्टम इज कमेंसुरेट विद द साइज ऑफ द कंपनी इन दैट पर्टिकुलर केस। 192 पहले भी था, 192 अब भी है विद रिगार्ड टू द नॉन कैश ट्रांजैक्शन। आई एम नॉट रिपीटिंग। 45 1A का क्वेश्चन पहले भी था, ये का अब भी है, परंतु जो नया क्वेश्चन ऐड हुआ आरबीआई की तरफ से, ये आरबीआई ने सीधा क्वेश्चन भेजा हमें, ये आपको और बता दूं, whether the company has conducted any non-banking financial or housing finance activities without a valid certificate of registration। आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की जो कि नॉन बैंकिंग की हो, मतलब कि आप एडवांस देते रहे लोगों को, और या आपने हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज की, हाउसिंग लोन्स आप देते रहे बेसिकली विदाउट ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ पे वेदर ये जो कंपनी जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी तो नहीं है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी वो है जिसने 90% पैसा जो है अपनी ग्रुप कंपनीज में लगाया हुआ और कहीं नहीं लगाया हुआ, और उसका कोई और पर्पस नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे बड़ा क्लियरली उन्होंने पूछा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का। इसके बाद वो क्वेश्चन है जो हम इनफॉर्मली पहले डिस्कस कर रहे थे, वेदर कंपनी हैज इंकर्ड कैश लॉसेस इन द फाइनेंशियल ईयर एंड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इफ सो स्टेट द अमाउंट ऑफ द कैश लॉसेस। अगर आपने कैश लॉस इंकर की, कैश लॉस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेट्स बी क्लियर। कैश लॉस के लिए तो आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी ना। हो सकता है आप दिखा रहे हो प्रॉफिट है और हो वहां पे लॉस,
ये भी पता नहीं अपने को। और ये भी हो सकता है कि आप लॉस दिखा रहे हो और वहां पे प्रॉफिट हो, लॉस प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकता है, जी जी क्योंकि सर, लॉस जी में तो आपकी डेप्रिसिएशन भी है। जी सर, मतलब जी इसमें सर। क्या है, कैश प्रॉफिट में तो मैं नहीं बोलूंगा, परंतु अगर आपने लॉस दिखा रखा परंतु कैश जनरेशन पॉजिटिव हो सकता, प्रॉफिट तो नहीं होगा सॉरी, परंतु कैश जनरेशन पॉजिटिव हो सकता लॉस के होते हुए भी। ये जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं इनमें डेप्रिसिएशन इज वेरी हाई और ये लॉस दिखाते हैं परंतु इनकी कैश जनरेशन पॉजिटिव रहती है। ये जितनी भी आपकी विंड मिल्स कंपनी है इनकी भी यही स्थिति है फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर। और फिर उसके बाद क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, if so whether the auditor has taken into consideration the issues, objections or concerns raised by the outgoing auditors। इसको जरा सोचिएगा। आपको पता है कितने रेजिग्नेशन हुए पिछले 2-1 साल में काफी ऑडिटर्स के? रेजिग्नेशन, बहुत कितने रेजिग्नेशन। कितने हुए राजेश जी, आपको फिगर दो। नहीं सर, 15-20 क्या? रेजिग्नेशन कंपनियों से। There are more than 50,000 resignations by the auditors। माय गॉड, 50,000। ये जितनी शेल कंपनीज वगैरह थी सब चली गई। सब ने रेजिग्नेशन दे दी। तो वो कहता अगर आउटगोइंग ऑडिटर ने दिया है रेजिग्नेशन, कोई कारण होगा कि किस कारण से दिया। ये तो नहीं कि वो तो ये कह रहा है यहाँ किताबें नहीं मिल रही और इनकमिंग ऑडिटर साइन कर रहा है बैलेंस शीट। तो बी केयरफुल। ये कुछ कंपनीज में हुआ अभी कि वहां तो आउटगोइंग ऑडिटर ने तो रिजाइन किया। आजकल कोई ऑडिट छोड़ना चाहता, मुझे ये बता दो, दिल पे हाथ नो रख के, कोई नहीं छोड़ना चाहता। नो सर। और अगर छोड़ा है और इनकमिंग ऑडिटर उसको साइन कर देता बड़े प्यार से बिना क्वालिफिकेशन के, तो ये हो नहीं सकता। इसलिए वो कहता है उसके कंसर्न्स, उसके रीजंस, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब देख लो कि वो छोड़ के क्यों गया। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैं बोलने वाला हूं ये अर्चना ज्यादा एक्सप्लेन करेगी। वो ये कहता बेस्ड अपॉन द फाइनेंशियल रेशियोज, क्योंकि अब कंपनी ने शेड्यूल 3 में फाइनेंशियल रेशियोज देनी है। इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उस तरीके से ये आंसर करना। On the basis of the financial ratios, aging and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, the auditor's knowledge of the board of directors and the management plans, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report, that company is capable of meeting its liabilities at the date of the balance sheet, as and when they are fall due within a period of 1 year from the balance sheet date। इसका मतलब ये है मुझे वर्चुअली ये बताना कि कंपनी सॉल्वेंट है। गोइंग कंसर्न में और इसमें फर्क है, ये ध्यान रखिएगा। गोइंग कंसर्न इन वन वे यू कैन अटैच इट, बट एक्चुअली गोइंग कंसर्न और इसका कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। ये तो ये बता रहा, पूछ रहा आपसे कि भाई जब मेरी कोई करंट लायबिलिटी ड्यू होगी, आपकी ये तसल्ली है कि वो पे हो जाएगी उस दिन या नहीं होगी। क्योंकि हम तो कंपनियां सालों साल लॉस पे चल रही होती थी, लिखते ही नहीं थे कुछ उसके बारे में। और अगर कंपनी गोइंग कंसर्न ही ना हो, मेरी सीधी सी बात है, तो इसमें मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा। जितनी भी रेशियोज हैं, करंट रेशियो भी हो सकती है, लिवरेज रेशियो भी हो सकती है, क्विक रेशियो भी हो सकती है, ये सब रेशियोज मिलकर स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी हो सकती है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी हो सकती है। अगर डेटर्स की मेरी होल्डिंग पीरियड बढ़ती जा रही है हर रोज, 3 महीने से 8 महीने हो चुकी है, तो भैया मुझे खतरा है। और ये कोविड-19 के पीरियड में तो और ज्यादा खतरा, सच्ची बात तो ये है। तो इसका आंसर देना इज नॉट गोइंग टू बी इजी। और इसके लिए पूरी वर्किंग, ये हो सकता है कि आप आंसर पॉजिटिव दो और अगले साल किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस की वजह से
सपोज कीजिए 31 मार्च में आपने कहा होता हाँ जी पे कर देंगे, परंतु कोविड की वजह से नहीं कर पाया, तो वो आपके पास आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी होनी चाहिए। ये कह रहा हूं आपसे बार बार, आपकी डॉक्यूमेंटेशन अंडर 230 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आप जरूर गौर रखिए कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आपने किस तरीके से ये कहा कि ये सॉल्वेंट है कंपनी, उस बात को मद्देनजर रखिएगा। फिर उसने सीएसआर के ऊपर 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। सीएसआर के बारे में उन्होंने ये कहा कि भाई जो सीएसआर, अगर तो आपने रेगुलर बेसिस पे खर्चा कर रहे हैं सीएसआर का, जो 2% करना तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपने कहा कि हमने तो ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो कहता अगर प्रोजेक्ट बनाना है और साल के अंदर खर्चा नहीं किया तो आपको वो अमाउंट एक अंडर सेक्शन रूल्स में एक पर्टिकुलर एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर करना 6 महीने के अंदर अंदर 31 मार्च से। और अगर वो पैसा उसके लिए यूज नहीं हुआ इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, तो आपने उसको पैसे ट्रांसफर कर देना सरकार को। वो दूसरा क्वेश्चन वो पूछता आपसे। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं किसी कंपनी के, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर सब्सिडीज में या जॉइंट वेंचर्स में, बेसिकली इसमें क्वेश्चन मेरा ख्याल सिर्फ सब्सिडरी का उसने किया है, इफ यस रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनीज इंक्लूडेड, नहीं जॉइंट वेंचर भी हो सकते हैं, एसोसिएट भी हो सकते हैं, जिनकी भी कंसोलिडेशन हुई है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर उनके ऑडिटर्स ने कारों में कुछ क्वालिफिकेशन दे रखी है तो वो कह रहे हैं उसके पैराग्राफ का रेफरेंस दे दो और उसकी नेचर ऑफ क्वालिफिकेशन क्या वो दे दो। पहले ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये नई रिक्वायरमेंट आई है इस साल में। मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। And now I'm asking Archana to have her comments basically on these issues. I think I have been able to finish it within my time. Yes, Archana. Thank you, sir. I think very comprehensive. What I was thinking maybe we can do, because you've already covered some of the key aspects of the. Says कि जो aspects मैंने कुछ questions आपको raise किए हैं, I will. you can deal with those questions, और उसके बाद then we'll get into the other more. Yeah. Maybe if I can just go clause by clause in the same order that you did. I think before that, the way I look at the orders, I think there are 5 or 6 elements that the regulators have tried to. One is they're looking at compliance matters. Like आप बता दीजिए आपके statutory dues आपने time से दे दिए नहीं दिए, 185, 186. 185, 186 is more than compliance, but typically internal audit, deposit of dues, etc. So एक element है compliance matter का. But I think obviously we've always acknowledged कि Caro goes beyond in a way the numbers and also focuses on propriety matters. Now this time I think the changes that have been introduced really signify this, and I think that is why the title today, the role of this in corporate governance. अगर आप देखें quite often लोग सोचते हैं ये तो कंपनी का business decision है, why should I get loan, देना चाहिए था नहीं देना चाहिए था. In fact, this is exactly what the regulator is saying. It is not just about आपका loan number correct है या नहीं, but is the transaction is it a bona fide transaction? And when I say bona fide, is it in the interest of the company? So ये जो governance वाले aspects है या propriety matters है, I think there this time the regulator seems to have widened the reporting. And you're absolutely right, a lot of it is driven by some of the corporate episodes which have happened. And very rightly so, agar aap inter-corporate loans and advances dekhein, I think especially in group companies, the way these are really used at a legal entity level, there can be certain challenges. So I think that is where specifically I feel they have increased the scope of reporting. Then the other interesting bit is some of the issues which I would have said कि ये तो financial statements में already disclosure होंगे, but the regulator is saying, listen, this is so key for us. We don't want कि कहीं पे किसी financial statements के notes में कहीं पे ending में छुपा है, and therefore these are material enough for these to be highlighted. So I think the discussion you had on Benami holding search and seizure. Now somebody could have argued कि अगर मैंने कोई अगर income surrender करी है तो मेरी अकाउंटिंग एंट्री आ जाएगी, मेरा डिस्क्लोजर आ जाएगा, रीस्टेटमेंट आ जाएगा. बट नाउ इफेक्टिवली
I think we need to be careful that the regulator is going to use Caro to identify these red alerts in the company. So, जैसे आपने कहा inventory का, search and seizure, willful default, auditor resignation. I think these are some key aspects. Some of them may be having disclosures in the financial statements, but now the regulator is saying we want these important matters to really stand out. And I think the fourth bit is the focus on the financial health. Now you may say, जो भी मेरा था default हुआ या मेरे कोई asset bad हुए मैंने provide करा, this is my asset and liability situation. But they are moving beyond true and fair. They are saying, tell us the ability to meet liability. So they are trying to now check not just the status at the end of the year, but say, okay, what is the solvency position? What is the financial health? अगर आपके cash losses current and previous year में थे, that speaks something about the financial health of the company. So, and the last bit, like you spoke about, was on the consolidated Caro. So I think when I look at Caro, I look at these 4-5 aspects or objectives, if I may say, that this focuses on compliance, propriety, important transactions, solvency, and now consolidated. So I think I think that is the context in which we should even evaluate, or when we are implementing the clauses, we should keep that intention in context. Now, when I come to fixed asset, I think so fixed asset you've already spoken. I don't really have much to add. Of course, they've added intangible assets this time, and I think that is a key one. And there can be questions around how do you work out the cost, especially if you're recording even internally generated intangible assets. So while you may not capitalize, how do you really track the cost to be tracked in the register, etc. I think my main question, sir, is on the inventory verification, and especially on where it is about the accuracy, or not. Let me not use the word accuracy. Whether the statements, which quarterly statements submitted to banks, etc., are in compliance with the books of account. Now, this of course is going to be one important thing, because as auditors, we typically focus on inventory verification at the end of the year. You look at the controls, working through the year, but you never look at any number which was the inventory number, say, at the end of the quarter, etc. So I think one bit here is what is expected of us as auditor. I think this bit we've discussed again, but just for the participants, I don't think हम इतना stop कर सकते हैं कि ये जी statement में ये number दिया, मैंने जी trial balance पे trace करा, finish. I think we need to do more than that. Again, going back to the objective of the regulator is that typically अभी तक कई बार there were instances, and a large number of instances, where quarterly returns जो दी जा रही थी banks को, वो 31st की नहीं देंगे या quarter end के exactly नहीं दे देंगे, उससे पहले देंगे, और उसमें discrepancies होंगी जो quarter end या year end तक rectify कर दी जाएंगे. And therefore, of course, there were concerns about drawing power, etc., whether there is the loans availed are beyond their drawing power and so on. I think here, while when you look at the guidance note, it talks about you just tracing it to the ledger. I think some bit will have to be done additionally by the auditors. Now, it could be just getting a more, carrying out more procedures कि आपको quarterly number, जो quarterly statements में amount गए हैं, उस पे assurance कैसे आए. So there could be varied ways of doing it. You could just look at the controls. You could maybe not every quarter, maybe in some quarters see, participate partially, see the kind of procedures they are carrying out in verification, and how were the discrepancies dealt with? What were the reasons for these discrepancies? How have the controls been adjusted? So I think one bit where I do see the role of the auditor, या जो हमारे audit procedure आज तक हम करते आए हैं, अगर कोई मुझसे पूछेगा ये एक particular clause है जिसमें मुझे थोड़ा सा additional काम करना पड़ेगा as compared to the past, and it cannot be just simply tracing it. This is quite onerous as a clause. The expectations of the regulators are also very large from this one. So I just wanted to highlight that quarterly, maybe especially in listed entities में तो वैसे ही काम quarter में हो जाता है, तो it's easier to kind of do this. But if you've got unlisted entities, we will need to see कि कैसे हम client के साथ involved रहे as part of audit, कि ये साल भर में भी ये वाला item verify होता रहे.
In terms of sir, anything on the inventory bit, I think this is important. So if you like to add here. No, I fully agree with you. One thing that probably we have fallen short of guidance from the institute side on this matter. I'm very clear on that. It may seem to be the criticism of the institute, which I'm not doing, but at the same time, you see, we have all, you have been a party to the entire discussion in the MCA. And the government intention was very clear that we have to check this kind of a situation to win. और हो ये रहा है कि 27 मार्च की इन्वेंट्री दे दी, हो ये रहा है कि मैंने 27 जून की इन्वेंट्री दे दी, मैंने 29 सितंबर की इन्वेंट्री दे दी, मैंने 28 सितंबर की दी, मैंने जाके 28 दिसंबर की इन्वेंट्री दी. तो आई थिंक द गवर्नमेंट वाज वेरी क्लियर कि भाई हमें 31 मार्च की इन्वेंट्री निकालनी है, हमें 30 सितंबर की या 30 जून की इन्वेंट्री निकालनी है. हम ये कि जी ऑडिट नहीं लगेगा, ऑडिट तो लगेगा ही, थोड़ा बहुत ऑडिट लगेगा उसमें, कैसे नहीं लगेगा ऑडिट. हमें फिगर्स की रिकंसिलिएशन तो करनी ही पड़ेगी. इट इज नॉट पॉसिबल दैट आई गिव एनी फिगर टू द बैंक एंड देन आई से कि जी नहीं मेरे को तो पता नहीं क्या फिगर है उस दिन. तो वो नहीं हो पाएगा. आई थिंक अगर हम अभी भी उसी तरीके से करते रहे जो हम कर रहे हैं तो काफी सिर और लटक जाएंगे बेसिकली. सो आई एम वेरी क्लियर कि हमें इन्वेंट्री के केस में और डेटर्स के केस में, मैं दोनों के केस कह रहा हूँ, अगर मैंने एक डेट में डेटर क्रिएट किया और अगली डेट में डेटर रिवर्स कर दिया किसी भी कारण से, ऑन फर्स्ट ऑफ इट आई रिवर्स इट फॉर सर्टेन रीजंस, तो वो चलेगा नहीं. आई कैन टेल यू टू दैट एक्सटेंट द ऑडिट विल हैव टू बी कैरिड आउट. अगर मैंने एक पर्टिकुलर डेट के डेटर्स दिए हैं तो वो डेटर्स मुझे ये भी वेरीफाई करना है कि जेन्युइन ही है. इनजेन्युइन डेटर्स नहीं होने चाहिए किसी भी सूरत में कि मैंने डेटर क्रिएट कर दिए. जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 295 वाला 31 दिसंबर को, टोटल सेल साल की 2 करोड़ 5 लाख है, 55 लाख की ओपनिंग है. कैसे हो गए 2 करोड़ 95 लाख हुए कैसे 31 दिसंबर को, जबकि पूरे साल के मिला के 2 साल से ऊपर नहीं हो सकते. अगर मैं पूरी सेल क्रेडिट ले लूं और ये मान लूं कि ओपनिंग बैलेंस का 1 पैसा रियलाइज नहीं था, तो हाउ कैन यू बी सेव्ड इन दो सर्कमस्टांसेस. तो मेरा अपना मानना ये है कि ये जो क्वेश्चन आया, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ बार बार, इस बार जो क्वेश्चन ऐड हुए हैं दोज आर बिकॉज ऑफ सर्टेन फ्रॉड्स हैविंग बीन परपेट्रेटेड. ठीक है, और अगर वो फ्रॉड्स फिर इसी तरीके से चलेंगे तो वी आर गोइंग टू बी इन प्रॉब्लम्स. एज ए प्रोफेशन वी आर गोइंग टू बी इन प्रॉब्लम्स. इंडिविजुअल की तो बात छोड़ दीजिए, अल्टीमेटली फिर जो हमारे बारे में कहा जाता है वो कहा जाएगा फर्दर. और मेरे ख्याल में कोई बहुत अच्छे टेस्ट में बातें नहीं है. तो मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो क्लॉज जिस पर्पज से आया है उस क्लॉज की इंटेंशन को, उस क्लॉज की जो गवर्नमेंट की थिंकिंग है उसको समझें और उसी तरीके से उस पर काम करने की कोशिश करें. और अगर हम यही कहते रहेंगे, मेरे से पीछे भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मुश्किल ये है कि जब तक हमारी समस्या ये हो गई कि हम अपने बारे में सोचना भूल गए, हम सिर्फ एक ही व्यक्ति का सोच रहे हैं और वो है क्लाइंट. ना तो हम अपना सोच रहे हैं ना हम सोसाइटी का सोच रहे हैं. भाई अपना और सोसाइटी का भी कुछ सोच लो. मैं कहता हूँ सोसाइटी का नहीं सोचना, अपना ही सोच लो यार. कम से कम थोड़ा बहुत कुछ तो सोचो अपने बारे में कि अपना क्या हो सकता. और ये वो टाइम नहीं है. नफरा के आप ऑर्डर्स पढ़िए ना, किस तरीके के ऑर्डर है नफरा के. और नफरा वो सब कुछ लिख रही है. नफरा तो यहाँ तक बुकिश हो गई कि अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में जो प्रैक्टिकली पॉसिबल शायद ना हो, उन्होंने वही सेंटेंस को कह दिया कि द ऑडिटर हैज नॉट कंप्लाइड विद दिस. अब यही फर्क है. अगर हम डिसिप्लिनरी कमेटी में बैठे हो कहीं पे तो हमें पता है कि ये चीज नहीं हो सकती. एक ब्यूरोक्रेट बैठा है उसको नहीं पता कि क्या होना चाहिए ऑडिट में, तो वो चीजें लिखवा रहा है जो नहीं हो सकती है और हम ट्रैप में फंस रहे हैं. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. अगर हम मोटा काम ठीक करते रहे, मोटे रूप से ठीक करते रहे, तो फ्रॉड जितने कम होंगे उतनी कम पकड़ाई होगी, सीधी सी बात. और अगर जितने फ्रॉड ज्यादा होंगे तो फिर उतनी ज्यादा पकड़ाई होगी. उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है. मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ इसमें. So sir, on this, I think there's also a question which I want to answer on the Q&A.
आई डोंट थिंक हम ये कह रहे हैं कि आपको नेसेसरली फिजिकल वेरिफिकेशन एवरी क्वार्टर करनी है, दैट इज नॉट द इंटेंट। आप प्रोसीजर्स करिए, आपको कोई भी प्रोसीजर, लाइक आई सेड, some bit of attendance could be maybe required। अगर आपका perpetual inventory system है, अलग है, कंपनी का क्या कंट्रोल्स है उसके बेसिस पे आएगा। एंड like I said, internal controls की testing itself may give you some kind of a comfort। So हर एक कंपनी का I think situation देख के कितने, और ये भी नहीं हो सकता आप एक क्वार्टर में थोड़ा सा आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर लें। अगर आप एक बार थोड़ा सा ये चेक कर ले कि कंपनी ने अगर ये प्रोसीजर्स फॉलो करिए, क्या ये जो आपको दिखा रही है पेपर पे, क्या ये प्रोसीजर्स एक्चुअली फॉलो हो रहे हैं। यू डोंट हैव टू नेसेसरली अटेंड ऑल ऑफ इट। आप उनके फिजिकल वेरिफिकेशन के प्रोसेस को अच्छी तरह इवैल्यूएट करें। So I think that quite the point I'm trying to make, I'm not saying necessarily कि आपको हर क्वार्टर में जाके full physical verification like ये arrange करनी है। That is not the answer somewhere बीच का है। Now somebody has raised a question that given the current time and COVID, physical verification is not possible. So I think March 2020, so sir, I think we've already discussed because of COVID under Caro. Now when I look at it and I look at the current quarters, I don't think physical verification अब इतना बड़ा इशू रह गया। जो आपका जून क्वार्टर का था, अब इतना लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। You could have done some other procedures. Like I said, जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, we are not necessarily expecting कि आप physical verification ही करेंगे। और आप आगे पीछे के प्रोसीजर्स करके भी अगर आपने बाद में वेरिफिकेशन करी, आप रोल बैक प्रोसीजर्स करके, you can always get comfort on a number. So I don't think now in the current year the COVID issue or the restrictions because of that will really stop you from commenting. I don't think अभी कोई इतनी limitation रह जाती है। And then anyway, institute ने guidance दिया, how can you, even if you're not able to visit, let's say if you believe physical verification essential है, company कर रही है, आप visit नहीं कर पा रहे, what are the alternative ways? आप वीडियो से करना चाहे या कोई और सीए वहां पे उस सिटी में यूज करना चाहे, काफी गाइडेंस उसके ऊपर अवेलेबल है। सो दैट आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन, बट द पॉइंट आई जस्ट वांट टू मेक इज इधर फॉर कारो not every quarter requires physical verification, but some procedures that will get you to give some assurance कि ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये जो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स गई है, ये रिलायबल है कम से कम। दूसरा अर्चना, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बेसिकली फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी कुड नॉट बी डन इन दिस कोविड सिचुएशन और इट शुड बी डेल्ट विद इन द रिपोर्ट। पहली बात तो हम जो इस कारो की बात करें, ये कारो तो 2020 पे लागू है। That's exactly what it is. परंतु इस कारो में एक ही बात है, क्योंकि आपको वर्चुअली हर क्वार्टर में जो रिटर्न्स जानी चाहिए वो आपको चेक करनी है, तो 30 जून की भी हो सकती है और 30 सितंबर की भी होगी और 31 दिसंबर की भी होगी। ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ये फिर वो कोविड-19 वाली सिचुएशन का है। Let's be very clear. I think this question has been answered fairly and squarely in the institute guidance also, कि भाई कोविड-19 के दौरान अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन उस वक्त नहीं भी कर पाए हैं, तो जब भी आप ऑडिट के लिए जाते हैं, whenever you go for the audit, you just see, आप उस डेट को जो इन्वेंट्री है अगर आप उसको चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलरली ए क्लास आइटम्स तो आप चेक करेंगे ही ना, ए क्लास या बी क्लास आइटम, उनको अगर आप चेक करके वर्क अपनी बैकवर्ड वर्किंग कर सकते हैं, एंड देन यू कैन कम टू अ कंक्लूजन कि 31 मार्च को जो इन्वेंट्री दिखाई गई है वो ठीक है या नहीं है। आई थिंक दैट्स द इम्पोर्टेंट इशू फ्रॉम दैट एंगल। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। और दूसरी ये है कि कई जगह अब जो इन्वेंट्री हुई है वो बेसिकली उससे भी है, आप कईयों ने तो वीडियोस लेके की है, कईयों ने वो ड्रोन्स के थ्रू की है, तो वो चल रहा है, वो all those things are going on, the procedures will have to be checked। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो बात अर्चना ने बोली, मैं फिर वही बात को दोहरा रहा हूँ कि भाई अगर कंपनी में परपेचुअल फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंटरी सिस्टम है, एंड इफ यू हैव बीन रिलाइंग अपॉन इट ऑल दिस पर्टिकुलर पीरियड, मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, अगर कंपनी में परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम था, अगर आप लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर हैं, तो आपने 30 जून को भी रिजल्ट दिए, पिछले 30 जून को, फिर 30 सितंबर को दिए, फिर 31 दिसंबर को दिए। आप इन्वेंट्री को तो रिलाई कर रहे थे ना उनकी। तो जब 31 मार्च की इन्वेंट्री आई, तो मेरे ख्याल में लिस्टेड कंपनी में तो मेनली ऑडिटर इवन फरवरी में भी गया होगा कुछ ना कुछ चेक करने। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको दिक्कत है। आपको दिक्कत अगले साल में ज्यादा आएगी, क्योंकि
जब आप ऑडिट, जो छोटी कंपनीज के आपने ऑडिट करने ना इस साल, उनमें ज्यादा दिक्कत है। मैं कारों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि छोटी कंपनीज का ऑडिट ही आपका शुरू होगा जून के बाद, और जून के बाद जो आपके ऑडिट शुरू हुए उसमें अब तो मूवमेंट हो ही रही है ना लोगों की। आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही, और अगर मूवमेंट हो रही है तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो भी सकती है, उसमें भी कोई शक नहीं। अल्टीमेटली कैश आप वेरीफाई करेंगे एक पर्टिकुलर डेट को, फिर उसकी बैकवर्ड वर्किंग करेंगे, वो भी तो करना है। वो कौन सा आप छोड़ सकते हैं? यू कांट लीव आउट दैट पर्टिकुलर एरिया आल्सो। तो लेट्स नॉट बी। और मैं फिर बार बार एक बात कहता हूँ, ये कहीं नहीं लिखा हुआ 501 में कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री 31 मार्च को, 30 जून को, 30 सितंबर को या 31 दिसंबर को ही होनी चाहिए। वो ये कहता है एक रीजनेबल सिस्टम होना चाहिए इन्वेंट्री सिस्टम का बेसिकली, और अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप सेटिस्फाइड हैं, दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। तो ये जरूरी नहीं कि आपने उसी डेट में करनी। सिर्फ अगर आपने सपोज कीजिए फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कर ली होती 31 दिसंबर को, तो उसके बाद तो 3 महीने का है ना, 3 महीने का रिकंसिलिएशन भी अगर प्रॉपर हो गया तो यू कैन रिलाई अपॉन। So that's exactly what I was saying. So coming to the next point on intercorporate loans, I think ये बहुत important है, and going back to your the point that you made, it is driven by some of the corporate instances. But I believe ये required भी था, sir, because quite often I have seen the thinking in the industry is very different. So let me just take an example. Let's say I'm a promoter of a company X, और मेरी उसकी मेरे पास 3 कंपनीज है XYZ, तीनों में मैं प्रमोटर हूँ और तीनों में मेरा लेट्स से 60% है। देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द प्रमोटर टू थिंक ये तो सारी तीनों मेरी कंपनीज है, मैं पैसा इधर से उधर उठाऊं, इधर से करूं, आई कैन जस्ट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मेरा ही तो पैसा है। बट व्हाट टू बी रियलाइज्ड इसकी उसके अगर 60 मैंने जैसे एक ईज ऑफ एग्जांपल के लिए लिया, जो 40% है वो नॉन कंट्रोलिंग है, उसमें किसी और का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। आप एक कंपनी एक्स से उठा के पैसा अगर कंपनी वाई में ट्रांसफर करते हैं, तो जो कंपनी एक्स का 40% शेयर होल्डर था, यू हैव पुट दैट पार्टी टू द रिस्क ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी वाई। तो प्रमोटर की ये टेंडेंसी होती है एट टाइम्स, जहाँ पे अगर 100% सब्सिडरीज है द मैटर इज वेरी डिफरेंट, बट इफ दीज आर नॉट 100% सब्सिडरीज, आई थिंक जस्ट दिस, ये जो कैश फ्लो होता रहता है बिटवीन द ग्रुप एंटिटीज, दिस एक्चुअली एट टाइम्स puts the non-controlling members parties to the risk. And sir, I will also like to go back to the bit that you spoke about on the pledge. Has the company pledged the shares of the subsidiary? I don't think it is just about accounting कि भाई अगर मैंने pledge किया, हो सकता है मेरी कंपनी मेरी subsidiary ना करे, but look at the risk you are to which you put that company to. नहीं, मैंने अर्चना सिर्फ ये एक इंडिकेशन इनको और भी दिया कि भाई ये भी एक कारण हो सकता है। Absolutely. And you should be looking at it. मैंने ये नहीं कहा that is the only purpose. I'm not looking at accounting alone. So one more sir, just point to add is that I think let's say if I was 60% holder और मैंने 20% shares pledge कर दिए कल को, और मैंने वो जो मैंने pledge करके लोन उठाया एक स्टार्टअप कंपनी में डाला, ठीक है, अब वो स्टार्टअप कंपनी कल को बस्ट हो जाती है, मेरा ये शेयर्स बैंकर ले लेता है, तो इमेजिन द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी, और ये बैंकर फिर अगर मार्केट में बेचता है तो इमेजिन द वोलेटिलिटी। सो नाउ बेसिकली वी आर सेइंग वो जो एक स्टार्टअप कंपनी का रिस्क प्रमोटर ने उठाया था, वो रिस्क बाय प्लेजिंग एंड टेकिंग लोन फॉर दैट, आपने वो रिस्क एक्सपोज कर दिया, यू एक्सपोज द कंपनी टू दैट रिस्क एंड देयरफॉर द नॉन कंट्रोलिंग पार्टी। I think these are, I mean, ये जो clauses है इनकी इसकी ऑब्जेक्टिव को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम मेरे को I mean एटलीस्ट ये नजर में आता है कि लगता है कि अच्छा ये तो क्यों मांगा, ये उसने अगर उसको दे दिया तो क्या हो गया, प्लेज कर दिया तो क्या हुआ, प्लेज करेक्ट तो था। I think we need to see beyond that. These are the issues which have actually happened wherein promoters pledged their shares because they were taking a business risk somewhere else, but the main company actually got impacted, उसकी pricing नीचे गई, या promoter के ये pledge करने से जब ये pledge invoke हुए, the kind of for the lack of a better word, the disruption that the company went through, or the loss of value that the other shareholders went through. So I think ये intercorporate loan उस angle से बड़ा important है, without taking any name. There being some, अगर आप listed entities के cases देखेंगे जिसमें काफी action लिया जा चुका, उसमें यही था कि एक फेलो सब्सिडरी से दूसरे फेलो सब्सिडरी में पैसा गया और वो फेलो सब्सिडरी पैसा वापस दे ही नहीं पाई,
तो आपको तो ये लगा क्या हुआ, मेरे लिए तो ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इधर से उधर गया, एक ने नहीं दिया। Yeah, but right from the day one, it was known that it will not be able to pay back. That's the आप problem. इसीलिए दिया क्योंकि आपको पता था उसकी खुद की क्रेडिट एबिलिटी नहीं है टू मे बी गेट लोन, या फिर लोन बहुत हाई रेट पे मिलेगा. सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स, दीज आर द रीजंस व्हाई इंटर कॉर्पोरेट लोन्स आर गेटिंग पिक्ड अप. एंड वेरी फ्रैंकली जब हम लोग भी बात करते हैं, माय कोलीग सीएस एक्चुअली रेज अ क्वेश्चन, हम ये क्यों पूछ रहे हैं, व्हाई आर वी सेइंग अगर लोन दिया बताओ, व्हाई कांट द कंपनी गिव अ लोन. नाउ वी आर नॉट सेइंग कंपनी लोन दे नहीं सकती. इट इज अबाउट हैव दे followed the right governance while giving it, right? Now my first question to anyone, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ तो मुझे खुद को पैसा चाहिए. हो सकता है मेरे पास कुछ सरप्लस हो, मैं कभी कभार एफडी में डाल दूं, बैंक में डाल दूं, या चलो मैं किसी को लोन भी दे दूं. बट आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग. व्हाई विल आई गिव अनदर एंटिटी अ 5 year 7 year लोन? मैं कोई फंडिंग एंटिटी, मैं फाइनेंसिंग एंटिटी तो हूँ नहीं. Now, typically, अगर आपने दिया कहीं ना कहीं आपने इसलिए दिया होगा because it is a group entity needs some kind of support. और अगर वो ग्रुप एंटिटी नहीं है तो आपने क्यों दिया? कौन 5 साल का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 5 साल का या 7 साल का लोन देगी टू अनदर अनरिलेटेड एंटिटी? सो आई थिंक स्पेशली जब इस तरह के लोन्स होंगे, देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द मैनेजमेंट टू आर्ग्यू ये तो रिलेटेड नहीं है, बट आप क्यों देंगे, एक ऑब्जेक्टिव समझना बहुत जरूरी है. सेकेंडली is also I think utilization देखना. Quite often ये क्वेश्चन आता है कि मैंने तो लोन दे दिया, मुझे उसके बाद क्या कि वो कैसे यूज कर रहा है, मैं उससे डिटेल्स कैसे मांगू उस कंपनी से. अगर आप देखेंगे सेक्शन 186 भी कहता है अगर आपने लोन दिया यू हैव टू डिस्क्लोज द पर्पस ऑफ द लोन. तो अगर मैंने कंपनी एक्स को लोन दिया तो मुझे उससे पूछना पड़ता है कि ये लोन किस चीज के लिए यूज किया जाएगा. And therefore that law itself gives me power to ask that company X कि आप बताइए आप क्या उस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं या नहीं. So I think it is very important to understand लोन क्यों दिया गया, पैसा उस हिसाब से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा. Because I may also add, एक तो मैंने कहा इस तरह से ग्रुप एंटिटीज का जो रिस्क जिस तरह से शेयर हो रहा है. सेकेंडली इज कई बार ये इंट्रा ग्रुप एंटिटीज के थ्रू पैसा देके प्रोमोटर टेक्स आउट द कैश फ्रॉम द कंपनी और बाद में कंपनी के पास कुछ नहीं बचता. बाद में प्रोमोटर कंपनी में कहीं जाता है, वो कंपनी फिर रीपे नहीं कर पाती. These have also been used as means for divergence of funds by promoters in some cases. So I think that is why we need to be very careful. And यहाँ पे ये जो question कारो में है on prejudicial becomes very important. So one is आपने दिया क्यों दिया, वो पर्पस के लिए यूज हो रहा है या नहीं. एंड थिर्डली इज प्रेजुडिशियल. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सब्जेक्टिव, very judgmental, difficult to comment on, but it is very critical. Let me take an example. मुझे ये समझ आता है कि एक पेरेंट सब्सिडरी, मेरी एक 100% सब्सिडरी है, मैं उसको लोन दे दूं, ठीक है, वो मुझे समझ आता है बिकॉज आई एम ट्राइंग टू बाय गिविंग, लेट्स से इवन इफ आई गिव अ लो इंटरेस्ट लोन एक्सेट्रा, आई एम which of course probably 185 में चले, सब्सिडरीज एग्जाम, लेट मी नॉट गेट इनटू लॉ, बट लेट्स से मैंने अगर लोन दिया है किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे दिया, आई कैन जस्टिफाई कि भाई ये तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया. अगर मैंने सब्सिडरी को लोन नहीं दिया, उसका अगर फाइनेंशियल हेल्थ नीचे जाती है या वो मोर एक्सपेंसिव लोन मार्केट से लेता है, तो मेरी ही इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी नीचे जाती है. बट लेट्स से मैं किसी थर्ड पार्टी को दूं, तो मैंने क्यों दिया, किस रेट पे दिया, क्या वो सिक्योरिटी थी, ये सब क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल. क्वाइट ऑफन ये बोला जाता है कि जी देखो मैंने इस एंटिटी को दिया, एंड कई बार वो प्रमोटर रिलेटेड एंटिटी होती है, मार्केट रेट जी 10% 12% पे दिया, तो प्रेजुडिशियल कैसे होगा, मैंने तो हायर पे दिया. आपने 12% पे तो दिया, आपने ये तो दिखा दिया कि मार्केट से ज्यादा है, पर उस एंटिटी की एबिलिटी नहीं है टू रीपे. तो आपने सो कॉल्ड पेपर पे दिखाया कि आई हैव गिवन अ लोन more than the market rate of interest, not prejudicial, but did you take any security for repayment? How did you check that party will be really able to repay? And these are the issues which become important. So I think prejudicial is and I actually believe this clause is good for the auditors, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम अकाउंटिंग में जाते हैं, क्योंकि नंबर करेक्ट है, तो ऑडिटर ये भी कहता है मैं क्वालिफाई कैसे करूं, ये लोन है इतने पे दिया, मैंने तो दिखा दिया नाउ, बट अगर एक उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस प्रेजुडिशियल है, उससे मैं ट्रू एंड फेयर व्यू को कैसे क्वालिफाई करूं. एंड आई थिंक दिस इज वेयर सम ऑफ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कम इन, जो मैं ट्रू एंड फेयर व्यू में अगर मैं नहीं पकड़ पाई थी, दिस इज क्लियरली अ प्लेस फॉर मी टू कैच इट. दो आई थिंक ट्रू एंड फेयर व्यू में भी बात करी जा सकती है दैट
does it impact a bona fide is there really a bona fide? So I think prejudicial वाला जो clause है उस पे काफी judgment लगानी पड़ सकती है, especially जहाँ पे structured transactions है, group transactions है और काफी intra group loans है. I'll come to evergreening, sir. नहीं, उससे पहले कमित गुप्ता जी का क्वेश्चन है, if there is no written agreement for loan given, then how to deal with it? I think you will have to give a disclaimer both with regard to, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, उसकी रीपेमेंट क्या है, उसमें बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं. तो आई थिंक इसका जो है, पहली बात तो आप मैनेजमेंट से पूछेंगे कि वेदर इट इज अ डिमांड लोन और इट इज नॉट अ डिमांड लोन. आफ्टर ऑल अगर एग्रीमेंट नहीं भी है तो उसका नेचर क्या है, टर्म लोन का है, डिमांड लोन का है, किस चीज का है, कितने सालों में आएगा. मैनेजमेंट ने अगर पैसा देना है तो कुछ ना कुछ तो सामने होना चाहिए, और मैनेजमेंट को अगर ये भी नहीं पता तो फिर तो प्रेजुडिशियल ही है बेसिकली. आई एम वेरी क्लियर. और दूसरी बात ये कि इसमें तो डिस्क्लेमर ना आने का मतलब ही कोई नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में. मुझे क्या पता कि वो कल आना चाहिए था या परसों आना चाहिए था किसी भी सूरत में. And if that kind of a comment comes now in Caro, I don't think the regulator is going to leave it. I am very, very clear. And sir, secondly, आपकी enforceability क्या है? आपके पास अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप कल को enforce recovery कैसे करेंगे? आपको यही मतलब, I think that's a big issue. How have you protected? It's a real issue कि आपने कल उसने डिफॉल्ट कर भी दिया, आप किस वक्त जाएंगे कोर्ट में? आपने उससे कही नहीं होगी कि कब देना आपने पैसा और किस रेट पे देना आपने पैसा. You have done nothing. So I think it is going to be a very, very difficult thing to do. नहीं सर, बिना रिटन एग्रीमेंट के कैन वी से दिस अमाउंट वाज गिवन एज ए लोन? You don't even know that. आपको तो नेचर भी, even we don't know nature. हमें तो पता ही नहीं ना उसका कुछ भी. Yes. How we can say that we have granted the loan? ये खास तौर पे जो एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन है उसमें बहुत ज्यादा है. ये मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होता. नहीं होता सर. एक दो क्वेश्चन और थे, इफ वी कैन टेक अप. Under a deferred payment of land payables to authorities under 6 monthly payment plan and found default will it is not a default of loan. Let's be very clear. ये आपने एक लैंड परचेज किया था, उसका एक लायबिलिटी खड़ी है, उसमें अगर आपने एक बार डिफॉल्ट कर भी लिया, आप the management wants to report it by way of note to account, it is a different matter. Otherwise, I don't think it does not get qualified so far as the loan part is concerned. Atul Puri ji, will giving a house loan to employees be required? No. आपने किसी अपने एम्प्लॉय को हाउसिंग लोन दे दिया तो it is not to be covered under that particular clause. The bank account of a company were attached by the government authorities and it used the accounts of the third parties as well as directors. How can it be done? I don't know. I don't think you can operate through the accounts of the directors or accounts of the third parties. Particularly third parties का तो कोई मतलब ही नहीं accounts का use होने का for day-to-day operations. Where and how it is to be reported. ये तो main report में ही आपके qualify होगा. Which law permits you to do that? इसका कारों के साथ तो कोई संबंध ही नहीं है, very frankly. Vinod Kumar Khanna, in case of loss making company, trading entries create to reduce losses with book profit and debtors increased. यही तो पकड़ना है मेरे बॉस, यही तो पकड़ना है. ये क्वेश्चन पूछा थोड़ी ना जाएगा. These questions are not to be asked. These questions have to be answered or to be discouraged rather. खन्ना जी पूछ रहे हैं इसका वे आउट क्या है? वे आउट तो मैं बता दिया, अपनी फिगर पहले करो, बाकियों की बाद में करो. एक बार कर रहा हूँ. In case of loss making company, trading entries created to reduce losses with book profit, and ये वही है question. It is definitely a fraud. अगर आप ये कह रहे हो कि ट्रेडिंग एंट्रीज क्रिएट की गई हैं, मैं आपको ये बता सकता हूँ, अभी हमने कम से कम तीन केसेस किए हैं डिसिप्लिनरी कमेटी में, जो हमारे पास केसेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से आए हैं या सीबीआई से आए हैं, जिसमें टर्नओवर इन्फ्लेट की गई थी. ये सब वो केसेस थे जिसमें टर्नओवर थी नहीं, बट टर्नओवर इन्फ्लेटेड थी. और उसमें जब हमने पूछा है उससे मेंबर से
कि भी वैट रिटर्न्स देखी थी, बोला वैट रिटर्न्स नहीं देखी। कभी बैंक में एंट्रीज देखी थी कि ये कोई पेमेंट आ रही है जा रही है किसी की, कि वो भी नहीं देखी थी। तो भैया वो फ्रॉड था, तभी सीबीआई के पास पहुंचे या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पहुंचा। तो आप रिपोर्ट करोगे तो बेहतर होगा, मैं यही कह सकता हूँ, बजाय इसके कि वो सीबीआई वाला या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला आपके अगेंस्ट कुछ लिखे। आई थिंक दैट्स ऑल। सर है कुछ क्वेश्चन रहे? एक दो क्वेश्चन है। if the company changes the character of creditors to unsecured loans as term liability without, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये बेसिकली किया जाता है जब आपने बैंक से लोन लेना होता है, आप करंट लायबिलिटीज को उठा के अनसिक्योर्ड लोन में डाल देते हो ताकि आपकी करंट रेशियो खराब ना हो और आपकी डीपी निकलती रहे। तो दिस कैन नॉट बी डन। बेसिकली दिस इज एन अकाउंटिंग जगलरी और अकाउंटिंग फ्रॉड इन इटसेल्फ। So, sir, sorry, on the employee loan bit, I just wanted to add. Yeah. So, employee loan पे sir actually कोई exemption नहीं है. I think when we were finalizing ये था कि guidance note में हम वहाँ पे डाल देंगे, पर guidance note में भी person नहीं, so I think maybe they can cover it in general. जहाँ तक prejudicial वाला clause है, वहाँ पे guidance note में इस issue को address करा गया है. वहाँ पे उन्होंने कहा है कि company, you may have situations where a company has a policy of giving concessional rate of interest, loans at concessional rate of interest to employees, and in that case they've said generally अगर ये company policy के according है, then these will not be. ये क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और था अर्चना। पहले employee loan का एक आया था, सब जो पहले employee loan का एक पहले आया था। नहीं, वो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा था कि अगर मैं एम्प्लॉय को हाउसिंग लोन देता हूँ तो क्या इट विल बी कवर्ड बाय द आरबीआई पॉलिसी ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी? एनबीएफसी कंपनी। जी जी जी, वो मैंने कहा था नो। सर 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे, मैं पूछ लूं सर? जी पूछिए। आयुष शर्मा जी पूछ रहे हैं। अर्चना से पूछना। अच्छा नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई भी बताए सर, बोथ आर स्पीकर। आयुष शर्मा जी पूछ रहे हैं, इज कारो एप्लीकेबल ऑन एनबीएफसी बैंकिंग कंपनी? नहीं, एनबीएफसी ऐसा है, एनबीएफसी इज नॉट अ बैंकिंग कंपनी, लेट्स बी वेरी क्लियर, इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यार। जी जी जी, हाँ, इट्स नॉट अ बैंकिंग। सिर्फ बैंकिंग कंपनीज को एग्जम्पशन है जो कि डिफाइंड है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन। जी जी जी, ठीक सर, ठीक। But so there is no change to the applicability. अगर आप एरो में जाएंगे बड़ा क्लियर है, बैंकिंग कंपनी का एग्जेम्पशन क्लियरली उसमें रूल में स्टेटेड है। एप्लीकेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो अगर पहले रिपोर्ट कर रहे तो अभी भी करे, नहीं कर रहे तो उसमें कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित गुप्ता जी पूछ रहे हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी कुड नॉट बी डन इन दिस सिचुएशन। ये हो गया। Whether clause 9 regarding default in repayment of applicable on working capital borrowings? नहीं, वो मैंने आंसर दिया ना कि डिफॉल्ट इन वर्किंग कैपिटल होता नहीं है, वो इरेगुलरिटी होती है। परंतु अगर एलसी डिवॉल्व होगी और वो डेबिट की होगी सीसी अकाउंट में तो डेफिनेटली डिफॉल्ट है, वो मैंने आंसर दिया। वैसे बैंक गारंटी का बोला मैंने सर ना, वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं सर एक क्वेश्चन मेरा आ रहा है दिमाग में, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर से हम फॉरेंसिक ऑडिट का काम नहीं करा रहे सर? ना, आई थिंक देयर आप जो मर्जी कहते रहो, और मैं कम से कम यार बार्क करवा रहे हैं हम तो, हम कह रहे हैं कम से कम अलर्ट तो दो यार। सर धीरे धीरे सारे क्लॉज आप फॉरेंसिक ऑडिटर के आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर पे लाते जा रहे हो सर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलो ये भी अच्छी बात है, फीस बढ़वा लो इसी चक्कर में। हाँ ये बात सही है सर। बट अगर आप देखेंगे काफी चीजें जो आप एज पार्ट ऑफ ऑडिट आप देखते हैं, सो अगर आप लोन ट्रांजैक्शंस उसके टर्म्स वगैरह तो आप आज भी देखते हैं। प्रेजुडिशियल अगर लेट्स से लोअर रेट है तो वैसे भी आपको अकाउंटिंग के लिए कई बार वो मार्केट रेट पे लाने के लिए या कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस देखने के लिए सब देखना तो पड़ता ही है। सो आई डोंट थिंक फोरेंसिक है कि वेयर इन यू आर going and investigating. These are anyway related to, these are issues coming from, जब आप ऑडिट करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन की ऑब्जर्वेशन का एक नेक्स्ट। राजेश जी हम नहीं कर रहे थे, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है ना। ऐसे 240 ये नहीं कहता कि जिस कंपनी की इन्वेंट्री या वर्क इन प्रोग्रेस 5 दिन का हो जाए और वो 50 दिन का दिखाता रहे और आप उसको इंक्वायर नहीं करो, इम्पॉसिबल। ऐसे 240 कहता है कि ये डाउट आपको क्रिएट करता है, इसको चेक करो। यही पूछा गया आपसे और कुछ नहीं पूछा गया। On the evergreening, sir, should we continue? Yeah, please. On the evergreening,
On the evergreening, sir, I had 2-3 points. I think one of the points which I was discussing with you, जिस तरह से clause worded है, if any amount has fallen due during the year, and then you see whether it has been extended, renewed, etc. So I think there are 2 or 3 points that you want to make. I'm very clear. It is either before or after. अगर आपने उसको लोन दिया है to repay your loan, you are covered. चाहे आपने उसकी evergreening पहले की है या बाद में की. So I think this is one area जहाँ पे again judgment लग सकती है for you to do 2+2, right? कई बार to say कि जी मेरा ये लोन आज 15 मार्च को ड्यू हुआ, 15 मार्च को रिन्यू हुआ या एक्सटेंड हुआ या मैंने दिया, इतने क्लियर केसेस कम ही होंगे. चांसेस आर आपको 2 ट्रांजैक्शंस का लिंकेज कहीं ना कहीं एक जजमेंट लगाना पड़ेगा. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा लोन ड्यू था 30 मार्च को और मैंने 15 मार्च को एक नया लोन ले लिया, ठीक है, और उस लोन से यूज करके मैंने रीपे करा, तो आई थिंक वैसे भी आपको देखना पड़ेगा. सो इफेक्टिवली टू कैच दी सिचुएशंस, वन वे इज कि अगर आप एक कंपनी ने आप दूसरी जगह फंस जाओगे. आपने लोन किस लिए लिया? व्हाट वाज द यूज? वो काउंटर पार्टी का आएगा सर. मैं तो अपनी का देख रही हूँ. अगर मैंने दिया, जिसने लिया वो कमेंट करेगा वेदर द लोन वाज यूज्ड फॉर द पर्पस. नाउ मैंने तो दिया, सो आई एम जस्ट सेइंग जहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई करना है, आई थिंक बेस्ट इज आप जितने भी लोन है कंपनी ने साल भर में दिए, एक तो आप उसके डिटेल्स लीजिए, फिर आप देखिए कि भाई इसमें से साल भर में किसकी जो इंस्टॉलमेंट्स थी टाइम पे नहीं आए, किसके क्रेडिट इश्यूज नजर आ रहे हैं. अच्छा, और मतलब बेसिकली अगर आप वो उठा के देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे फोकस करना है. और अगर एक पार्टी को एक और लोन दिया गया आइदर बिफोर और आफ्टर, आई थिंक उसको भी स्टडी करें कि इसकी क्या लिंकेजेस हैं. सो जस्ट टू ऐड, आई थिंक यू विल नीड टू बी वेरी केयरफुल. और कई बार ये जो एक्सटेंशन वगैरह बड़े इनडायरेक्ट वे में होती है. इफ आई कैन जस्ट टेक 2 एग्जांपल्स सर, जस्ट टू मेक श्योर पीपल गो बियॉन्ड जस्ट द नॉर्मल लुक. नाउ लेट्स से मेरा लोन था जिस पे मेरे को 12% इंटरेस्ट देना था, लेकिन मैंने रीस्केड्यूल किया कि आप 2% कर दीजिए और एक बुलेट पेमेंट एंड में दे देना. दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एन एक्सटेंशन. सिमिलरली मैंने जो काउंटर पार्टी थी उसके वेंडर को लोन दिया, राइट, उसने मेरे वेंडर को लोन दिया, तो ये भी एक सिस्टम हो सकता है. तो आई थिंक बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि बड़ा क्लियर है कि जो आपने लोन दिया वहां पे इम्पेयरमेंट है, लेकिन आप वो इम्पेयरमेंट दिखा नहीं रहे, आप उस लोन को अभी भी गुड दिखा रहे हैं. सो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. चाहे जैसे सर ने कहा, अगर मैंने उसको एक न्यू लोन दिया बिफोर और आफ्टर, अगर मेरा 31 मार्च के बाद भी मैंने 5 अप्रैल को अगर उसको रिन्यू किया, आई थिंक तब भी मुझे रिपोर्ट करना चाहिए. सो आई थिंक इट इज अल्टीमेटली अबाउट the balances which are outstanding at the end of the year, उसको कहीं स्ट्रक्चर करके गुड तो नहीं रखा गया है. Now ये भी होता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा आज एक एग्जिस्टिंग लोन है, कंपनी दूसरा लोन लेने को आती है, एंड क्वाइट ऑफन पीपल क्वेश्चन क्यों उसका दूसरा प्रोजेक्ट भी तो हो सकता है, आप क्यों प्रिज्यूम कर रहे हैं कि दूसरा लोन हैज बीन टेकन टू रीपे द फर्स्ट लोन. आई एम नॉट सेइंग नेसेसरली इट हैज. व्हेन यू हैव सच सिचुएशंस कि आपने जैसे ही दूसरा लोन दिया उसके थोड़ी देर बाद ही उसने पहला लोन रीपे कर दिया, जस्ट स्केप्टिसिज्म वुड से कि आप उसको पूछिए तो सही, हो सकता है कुछ ना निकले, हो सकता है कहीं और से, एंड मनी इज एनीवे फंजिबल. So I think these are some of the indicators that you'll need to be very careful as far as evergreening is concerned. दो क्वेश्चन और हैं अर्चना before we wind up. एक है सर, what about the audit fees? Fix it for yourself. अगर ज्यादा मिल जाए तो सर को भी दे देना यार, यही कहते हैं. और क्या बोलूं. और दूसरा है expenses incurred in earlier years were not accounted. Auditor has qualified report whether in subsequent years such expenses can be accounted. You can always account for. ये थोड़ी ना, परंतु ये अगर omission थी, error था, तो in any case you are bound by the accounting standard. और पर इसमें एक ही चक्कर है, अब 131 लग जाएगा क्या अर्चना? अगर मैंने क्वालिफाई कर भी रखा है पिछले सालों का और मैनेजमेंट ने अब कहा कि हमारी गलती थी, एंड इफ इट इज अ मटेरियल अमाउंट, देन व्हाट हैपेंस? रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट्स. सर रीओपनिंग मैंडेटरी नहीं है, मैं रीस्टेटमेंट कर सकती हूँ. रीस्टेटमेंट तो पक्का होगी, एंड देन रीओपनिंग इज अ वेरी. आप रीस्टेटमेंट की बात कर रहे हो सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ इंड एस.
AS में आपके मैं कंपनीज AS में एक्ट की बात करंट थ्रू PNL नहीं, कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूँ. अगर अमाउंट इज रियली सब्सटेंशियल, वो ये कहता है अगर मैनेजमेंट वांट्स टू नाउ, पहले नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थी, अब आप उसको कंप्लाई करना चाहते हो तो क्या करोगे? so like I said वो तो कहता है ट्रिब्यूनल जाओ. So one is I correct the error and under AS वो current year से जाता है, under Ind AS आप restatement से करते हैं, but आप correct कर सकते हैं. The second is to say इतना ज़्यादा error था. If I take a fraud scenario, basically एक accounting error I don't think मतलब reopening पे जाएगा. Typically it will be fraud situation जो reopening पे जाएगी. सेक्शन तो यही कह रहा है आज की डेट में, और उस पर हमारी काफी लड़ाई हो चुकी है MCA में. वो ये कहते हैं साहब, वो ये कहते हैं कि कोई भी अगर आपने पिछले सालों का रेक्टिफाई करना, इट्स अ वॉलंटरी रीस्टेटमेंट, इट्स अ वॉलंटरी रीओपनिंग, तो आपको जाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल. वो हम नहीं एग्री कर रहे उससे. आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक. सो वन विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि उसका अमाउंट कितना. अगर अमाउंट सब्सटेंशियल है which was affecting the true and fair view in the earlier years, you will definitely have to go through the tribunal route. You have no choice. So on the 2 points that you had raised, one is on the LC bit. I agree with you, so I will not take time there. The other, you had also spoken about the undisclosed income. Now there I just wanted to highlight one thing the guidance note says, and which is correct also, कि भाई every time you get something from, let's say आपने with your own appropriate knowledge etc आपने एक position ली, tax authorities ने आपको challenge किया, you lost the case. Now that doesn't mean this is a case of undisclosed income, right? But this is where you had actually hidden, जानबूझ के आपने छुपाया था. But Yeah, there again it says you will the wording is very clear. जहाँ पे आप surrender करते हो. Surrender. Where you surrender. Then again, sir, in the context of surrender, they are saying this will only cover situations where the company voluntarily. Now let's say sir, अगर search and seizure होता है and it is not about a tax position, right? But एक search and seizure हुआ and this is where it came out. Will it still, then it will not be considered to be reported here because guidance note says you do only where the company is voluntarily surrendering. Surrendered or disclosed, either of the two things. अपने आप अगर वो addition करते हैं तो we are not bothered. Not the normal addition, but let's say there is a raid, right? And then something is identified. Raid है, raid में अगर कुछ पकड़ा जाता है और वो undisclosed income में आता है तो definitely मैं पकड़ा उसमें आऊँगा. So that was one. Now coming, I don't know, I think we have 5 minutes, just 1 or 2 clauses which I wanted to. I think you made a reference to whistleblowing. That's very important, and the fact that internal audit clause has been brought back. And now, पहले तो क्या था, so you just had to comment on whether the internal audit system is commensurate with the size and nature of the company. But now actually it also requires the auditor to say, you have considered the reports. So I think ये एक responsibility आज भी हम करते थे, but जैसे आपने ये कहा कि भाई you will need to be very careful because now you will be in a way signing off a statement कि हाँ मैंने वो reports देखी है. And I think whether these are draft etc, as long as they have been put to the board or audit committee, we should be looking at that. The second is whistleblowing. I think again very important. As far as listed entities are concerned, वहाँ पे तो regulations are very clear in terms of how the whistleblowing mechanism should work. But how do you deal with this clause in unlisted entities? क्योंकि उनका कोई structure नहीं है, उनकी कोई regulations इतनी नहीं है. And I think this is where it becomes important that we will need to see, maybe the unlisted entities may not need to have a system as sophisticated as listed, but उनको कुछ ना कुछ अपना internal control system दिखाना पड़ेगा. How do they capture whistleblowing? What is their process of dealing with whistleblowing mechanism? How have एक balance वो कैसे maintain करते हैं in terms of getting the facts, getting the information while protecting the identity of the whistleblower? क्योंकि कई हमने whistleblowing schemes में ये भी देखा है policies में कि if it is an anonymous complaint, we will not accept. Now that you can't do. अगर एकदम sketchy facts है, कुछ नाम नहीं, I can understand. But हो सकता है कि एक whistleblower अपने आप को protect करने के लिए नाम नहीं देता, पर वो information पूरी देता है, proof पूरा देता है. I think in that case, how does the whistleblowing mechanism of the company deal with these situations? I think these will become important questions. And there can be, in a large company, there can be many, unfortunately, many cases, because कई बार बड़ी frivolous complaints भी आती. So how do you really
look at all of them and comment on this. I think this will be another area for the auditor to deal with very carefully. And so last, I just wanted to comment on the point you made on whether the company bases the ratio, etc., whether the company is capable of meeting the liabilities which are due in the next 1 year. I think again very relevant, and your point is absolutely right. ये going concern से थोड़ा different है. ये एक solvency की बात है और एक going concern larger issue है. ये हो सकता है कि मेरे पास कैश है लेकिन मेरे पास बिजनेस नहीं है, मैंने अपना सारा बिजनेस बेच दिया, आज मेरे पास कैश पड़ा है and I plan to undertake new business. I may be solvent, but I'm not a concern. But इसको going concern से थोड़ा सा हटके देखने की जरूरत है. और जब आप ये देखें whether or not a company is capable of meeting this, I think current ratio अगर adverse है तो बड़ा important हो जाएगा. अगर company significantly dependent है short term borrowings पे, particularly अगर किसी ने वो practice कर रखी है कि current क्रेडिटर्स को उठा के अनसिक्योर्ड लोन्स में ले गया तो बिल्कुल ही इंसॉल्वेंट है. जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जी हम क्रेडिटर को उठा के बिना उनकी कंसेंट के अनसिक्योर्ड लोन में ले गए तो बिल्कुल ही इंसॉल्वेंट है. लेट्स बी क्लियर ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. So I'm just giving some of the indicators. I'm not saying these will necessarily be, but current ratio, companies' dependence on short-term borrowings, future projection showing a negative EBITDA. अगर आपको नजर आ रहा है बार बार की कंपनी डिले करती है अपने वेंडर पेमेंट्स में या काफी उनके डिफॉल्ट्स हुए इन स्टैट्यूटरी ड्यूज या लोन्स, these are all indicators. Then I think जो एक clause है short-term funds used for long-term purposes, जो clause 9D है, that itself can become relevant here. अगर एक कंपनी ने short-term funds for long, ये सारे indicators भी आपको help कर सकते हैं to really see will the company be able to meet the liability. So going concern is a much wider issue. उसमें आप एक देखते हैं कि क्या बिजनेस का क्या बिजनेस कंटिन्यूटी होगी या नहीं, और ये डील कर रहा है विद वन एस्पेक्ट ऑफ गोइंग कंसर्न व्हिच इज फाइनेंसिंग. तो अगर आप गोइंग कंसर्न देखते हैं उसमें आप फाइनेंसिंग देखते हैं, आप ऑपरेशंस देखते हैं, देयर आर वेरियस अदर थिंग्स दैट यू लुक एट फ्रॉम अ एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू कंटिन्यू. बट ये क्लॉज लार्जली आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पे फोकस करता है, एंड आई थिंक therefore some of these indicators can become very relevant. So I think just that. And last bit, sir, if I can just pose the question to you, which I said I will. I do not know how many of the participants here may not have, I do not know how many of them have consolidated Caro, but अगर consolidated Caro में अब हमें जितने भी subsidiaries या उनके अगर कुछ Caro के comments है वो reproduce करने और refer करने at least. So does this necessarily mean that अगर मैं एक parent entity हूँ तो before I can release my report, it is essential कि मेरी सब्सिडरीज वगैरह के अकाउंट्स हो जाए, उनकी कारो रिपोर्ट्स मेरे पास आ जाए, तभी कंसोलिडेटेड कारो बने. और कैन आई डू दिस कि मैं कहूँ भाई अभी तो मेरी 10 सब्सिडरीज हैं, 5 का ऑडिट हुआ था, ये लीजिए 5 की रिपोर्ट, उसके बेसिस पे आप लिख दीजिए, बाकी आप कह दीजिए आए. सो हाउ विल इट, बिकॉज दिस विल नाउ रियली इम्पैक्ट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पेरेंट ऑडिटर एंड द कंपोनेंट ऑडिटर. क्योंकि कई बार कंपोनेंट ऑडिटर आपको नंबर फ्रीज करके दे देता था और आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स पे ट्रू एंड फेयर दे देते थे और फुल रिपोर्ट बाद में आती थी. नाउ हाउ विल दिस वर्क नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड? वेरी क्लियर, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट. पहली बात तो ये कि मुझे सारी की सारी कारो रिपोर्ट रिप्रोड्यूस नहीं करनी. मुझे सिर्फ और सिर्फ पेरेंट वाले में अगर किसी सब्सिडरी में कोई एडवर्स कमेंट है कारो में, सिर्फ उस सब्सिडरी का नाम और उसके वो पैराग्राफ्स को रेफर करना है. और दूसरी बात ये कि अगर वो ये कह रहा है कि साहब कंसोलिडेशन नहीं हुआ, मतलब वो सॉरी कारो बनी नहीं है, तो मुझे फिर उन सब्सिडरीज का नाम देके ये डिस्क्लेमर कारो में देना ही पड़ेगा. आई हैव नो चॉइस एट ऑल बेसिकली. एंड आई थिंक दैट इज वेयर वी वाइंड अप टुडे. ओके, थैंक यू. एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहले पूछा था कि कंपनी के पास बैंक अटैच हो गए और उन्होंने वेंडर्स जो थे उनकी पेमेंट की डायरेक्ट फ्रॉम देयर डेटर्स को बोला मेरे इस वेंडर को पेमेंट कर दो. नाउ इन माय ओपिनियन दिस इज आल्सो गोइंग टू अफेक्ट द गोइंग कंसर्न बेसिस आल्सो बिकॉज़ द कंपनी डज नॉट हैव मनी, देन दे हैव बोरोड मनी फ्रॉम द डायरेक्टर्स एंड देयर इज नो डेटर व्हिच कैन रिकवर. यस, दे हैव वर्क इन प्रोग्रेस. उसमें तो बिल्कुल क्लियर है सर कि संजय जी कि अगर मेरे पास सारे बैंक अकाउंट मेरे फ्रीज हैं,
बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस मेरे पास कोई पैसे ही नहीं है, और अगर मैं एक्चुअल में एक्टिविटी कोई अपनी कैरी आउट कर नहीं सकता तो मुझे गोइंग कंसर्न तो देखना ही पड़ेगा अंडर 570। आई हैव एब्सोल्युटली नो चॉइस। और सिमिलरली मुझे सॉल्वेंसी भी देखनी पड़ेगी, दोनों चीजें हैं। तो ये सब चीजें तो मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है बेसिकली कि 570 विल बिकम वेरी रेलेवेंट। अगर मैं अपना बिजनेस ही नहीं कर सकता, अगर मेरे पास पैसा क्रेडिटर को देने को नहीं है और डेटर कह रहा मैंने और कुछ देना नहीं तुमको, तो फिर मैं चलाऊंगा कैसे बिजनेस को? और बैंक तो देगा नहीं, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट ही मेरे फ्रीज है तो कौन सा बैंक मुझे हेल्प करने को आएगा? नो वे। बैंक से फंड्स आएंगे भी तो वो सरकार ले जाएगी, जिस वो सरकार ले जाएगी, whatever it is. So I think that goes without saying. Thank you very much. That means insolvency, going concern also has to be, both have to be taken into account. Okay. सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, जो आपने 3 कंडीशन बताई कारो एप्लीकेबिलिटी की, वो 1 अप्रैल को चेक करेंगे या 31 मार्च को? ऐसा है, जो 2 कंडीशन बाद वाली है वो तो ड्यूरिंग द ईयर है, और जो फर्स्ट वाली है वो एज ऑन 31 मार्च को है। ठीक है सर। ओके, चलो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Archana ji, thank you sir, thank Sir, you. I request Rajiv Kohli ji, please present a vote of thanks, sir. Kohli saab, over to Kohli saab. Thank you, Chopra sir. Thank you, Archana. It's not business as usual. Good governance is a premium, and the company is different from the promoters, and their greed and their white collar crime has to be reported. You can't wrap it under wraps. It has to be taken loud and clear. Yeah. Certain things I wanted to take on, sir, like revaluation assets, Benami assets, and plant property. No, intangible assets, the IPR is not registered in the name of the company. Do we report? So that is IPR. Yes, sir. IPR is many a time not in the name of the company at all. We're showing as an intangible asset. There is no copyright or. वो करना पड़ेगा सर, करना because it पड़ेगा। has to come line this. वो करना पड़ेगा। Very comprehensively done on subrogation of loan and window dressing, but then if the loan is from a second party is fair enough, you have to be very, very careful, because company A has the borrowing capacity, borrowing funds, and the other companies are being fed, which is basically wrong, because your financial sector reports are there. Surrender of income is very, very critical. That's a new point. Your housing loans and designation of audit is a new point. Then solvency and financial ratios, because incipient signals of financial sickness has to be reported, because the funds are not. So thank you very much. And the CSR funds have to be used. That's another point. So thank you very much for the nice deliberation, very exhaustive things, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank Thank you. you, madam. Thank you. Thank you, sir. Thank you, madam. Thanks to more than 200 participants. That's all I can say. Thank Sir, you. more than 250, 266, sir. 266. Okay, boss. Thank you. राजेश जी, चोपड़ा साहब आए और 260 ना हो तो कैसे हो सकता है? Thank you, boss. Sir, we are Thank so you, proud sir. of you. Very proud of you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir.